Hello and welcome to yet another episode of Coach I Need Help. Today is episode number 8. We are going to talk to you about how do you set up a webinar registration systems. I'm sorry for that fumble, but hi, I'm Manish Ahuja. The other person on the screen smiling with his beautiful smile is Pankaj Hi. Agarwal. Hi. So we are two coaches. I am a money mindset and financial literacy coach. Pankaj is a webinar selling laser webinar coach. He is probably going to talk to us about his brand soon. But having said that, today we are going to talk about everything that you need to do to actually run a successful webinar. What are the tools that you need to get your rooms filled in your webinar? How do you actually set up your entire webinar room in the right sense? How do you create a brand even before somebody enters your webinar? What are the components that you need? We are going to talk about a very important topic called landing pages. How do you design your landing page? We are going to introduce a landing page to you today. And how do you set up the entire process? So if you are excited about this, make sure that you watch this episode till the end. If you're new here, please do consider subscribing. And whenever you have any questions during the episode, please do not forget to just pause your video and ask us your questions in the comments below. Okay. Yes. So with that, let's get started. Very warm welcome to you, Pankaj. Today we are talking about Thank you. your domain. Yes. Yes. Today we are going to get all the information from you. So are you ready? Yes, definitely. I'm always ready. Perfect. How are you doing? What's new? What's happening? But yesterday I bought a new MacBook, तो बस वही चलाना सीख रहे. So today I'm featuring this episode from that only. देखते हैं कैसा Many लगता है. congratulations. Many Thank you. congratulations. Perfect. So, you got a new MacBook. So, your new registration system is going to be designed on your new MacBook. I see. Yeah, मतलब थोड़ा सा भी like I was always a Windows user from last 15-20 years. Like Correct. class 4-5 से मैं चलाता था वो सब कंप्यूटर वगैरह. So Correct. बहुत टाइम हो गया. तो अब मैकबुक में शिफ्ट करना लाइक थोड़ा थोड़ा. कल जूम इंस्टॉल करने में मेरा हालत खराब हो गया. आई हैव टू वॉच अ ट्यूटोरियल ऑन यूट्यूब, देन अगेन आई लर्न दिस. तो आई थिंक आई नीड अ कोच फॉर ऑपरेटिंग दिस मैकबुक एज वेल. जब बोलते थे ना कि हर चीज के लिए कोच चाहिए होता है. बट ठीक है, धीरे धीरे सीख जाएंगे. मेन मेन रीजन फॉर बाइंग दिस मैकबुक वाज बैटरी बैकअप. सो Huh. होप दैट गेट्स सॉल्व्ड नाउ. It will definitely get solved. I have particularly been using a Mac machine for over 11 years now. This is my second Mac. I also recently got myself a new MacBook, but I can't see myself using a Windows machine anymore. Of course, it takes time. The learning curve is it can get a little daunting, but the best coach that you can get for a Mac is YouTube. Till ग्रेट date, ग्रेट. I get stuck with something. The only thing that I go to is a YouTube video, and all my questions are solved. So, आपको yeah. क्या लगा सबसे सबसे बेस्ट चीज क्या लगा जो आप बोले यू कांट स्विच टू विंडोज एनीमोर? एक तो आदत हो जाती है. दूसरा, the best thing about a MacBook that I like is I don't remember when was the last time my laptop got stuck while I ओह. was working. कोई ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ नहीं आती है, कोई भी अचानक से रीस्टार्ट नहीं होता है. इट्स स्टेबल. देखते हैं. लाइक जो मेरे अभी करंट आसूस ROG स्ट्रिक्स था बहुत दिन से. सो वो भी लाइक साल 1.5 साल से चल रहा था. उसमें भी ये सब इश्यूज नहीं आ रहा था स्टक होने वाला. सो लेट्स सी. Huh, a 1.5-year-old machine is not going to give you trouble on Windows. I'm sure about that. And anyway, ROG is supposed to be a high-end machine. जितना का मैकबुक है उतना का वो है. Correct. But अचानक से अपडेट तो आता है ना अचानक से कि लाइक जो कर रहे हो सब छोड़ दो अचानक. नाउ आई एम गोइंग टू रीस्टार्ट योर मशीन. नहीं, अभी तक तो वो सब भी नहीं आ रहा है. बट हाँ, अच्छा. आई हाँ. कैन अंडरस्टैंड. बट ये दोनों ऑप्टिमाइज हो रहा है. लेट्स सी. मैं अगले Correct. साल लाइक आफ्टर 2-3 मंथ्स आई विल शेयर द एक्सपीरियंस अगेन. मेरा क्या I'm एक्सपीरियंस sure रहा I'm sure it's going to grow on you. Mac generally tends to grow on people. So है. I know for a fact. Can I go back to Windows? Yes, I can because I'm a techie. मुझे थोड़ा वापस तकलीफ होगा लेकिन मैं आ जाऊंगा वापस विंडोज पे. डू आई वांट टू गो बैक टू विंडोज? नॉट रियली. ये सेम आईफोन के साथ भी था मेरा. जब व्हेन आई वाज एंड्रॉइड यूजर तो आईफोन को कर्स करते रहते थे ये वो. बट आईफोन आ गया तो अब पता चल रहा है कि फीचर दोनों में सेम है लगभग. बट एक क्वालिटी होता है. इंटरफेस इंटरफेस वो हाँ जो कि ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस है वो थोड़ा यस अलग हो जाता है. कि अगर जो एलईडी स्क्रीन है जो उसमें एंड्रॉइड में था और जो इसमें जिस क्वालिटी का स्क्रीन है, दोनों का पूरा एकदम जमीन आसमान का अंतर रहता है. हर चीज का मतलब एकदम टॉप नॉच एक्सपीरियंस रहता है. लगता है कि हाँ कुछ चला रहे हैं. सो सेम मुझे मतलब मैकबुक में मैं भी फीलिंग आ रहा है. हाँ, मैं डाल दो. यूजर एक्सपीरियंस पे फोकस करता हूँ. मैं ये जो जितना भी मार्केटिंग गिमिक्स है एप्पल का, आई हम्म. कंप्लीटली बिलीव दैट डज एप्पल मेक द बेस्ट प्रोडक्ट?
cutting bleeding edge product? No. There are so many things on an iPhone that are still not available. It does not have T9 dialing, it does not have the best camera, but it is the most stable camera. Yes. You will not find any trouble with an iPhone, but if you want to go feature to feature comparison, Android is always going to be better, at least for me, because I'm a techie, मैं दोनों manage कर लेता हूँ. I've always used two phones. ग्रेट, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ आफ्टर दिस एपिसोड. तो चाहे Sure. ट्रबल आ रहा था, मेरे आईफोन में भी कुछ कुछ बग्स मिल रहा है मुझे. आई एम नॉट श्योर कि Sure, सिर्फ sure. मेरे में हो रहा है या कैसे. सो देख लेट्स लेते गो हैं. बैक एंड लेट्स But स्टार्ट for विद द now, let's debug all the bugs from a coach's webinar registration system. yes Today yes it's all about you. So tell me, let's start with the most basic and the most fundamental point. yes Do coaches or businesses need a website in 2023? Can you actually manage your entire yes business without a website? And if you need a website, why do you need a website? ग्रेट. सो इसका मैं एक एग्जांपल लेके आंसर देना चाहूंगा. जैसे कि आप बोलते हैं हर चीज को रियल वर्ड से रिलेट करो. सो Correct. किसी को एड्रेस चाहिए होता है क्या? फिजिकल एड्रेस, घर का एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस. तो एड्रेस चाहिए होता है क्या? बस आप उतना ही इंपॉर्टेंस है आज के जमाने में वेबसाइट का. अब Correct. भले वो वेबसाइट हो चाहे लैंडिंग पेजेस हो, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले, बट आपके नाम पे एक डिजिटल आइडेंटिटी होना चाहिए. जैसे इंडिया में Correct. आपके लिए आधार कार्ड है, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो आपको वेबसाइट चाहिए ही चाहिए. वरना लोग आपको सर्च कहाँ पे करेंगे? गूगल पे सर्च करेंगे, सर्च तो कर लिए, लेकिन क्लिक करके कहीं तो जाएंगे ना. या तो आपके Correct. वेबसाइट पे जा सकते हैं या किसी और के वेबसाइट पे जा सकते हैं. सो आप देख लो कि आपको अपने दुकान में बैठ के बिजनेस करना है या फिर बगल वाले की दुकान में बैठ के अपना बिजनेस चलाना है. तो ये वाला आंसर रहेगा, आप खुद से सोच लो. It makes absolute sense, but I see where you're coming from. लेकिन एक छोटी सी चीज है जिसमें हमें clarity चाहिए रहेगी, especially to our audience, especially the ones who are absolutely new. So let's say paycheck2profit.com मेरा domain है. ऑल राइट. क्या मेरा डोमेन ही मेरी वेबसाइट है, कि या डोमेन या वेबसाइट दो अलग अलग चीजें होती है? नहीं, डोमेन तो वो हो गया आपका जो नाम होता है, google.com, पंकज अग्रवाल.com, आपका paycheck2profit.com, youtube.com, कुछ भी .com या .net.in कुछ भी टाइप कर रहे तो वो हो गया डोमेन. और करेक्ट. वेबसाइट हो गया अंदर का कंटेंट, वो यूजर इंटरफेस हो गया. एक करेक्ट. आईफोन अलग हो गया और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग हो गया. उसी तरह से कुछ डोमेन अलग होता है, वेबसाइट अलग होता है, और एक होता है कॉन्सेप्ट वेब होस्टिंग करके. वेब करेक्ट. होस्टिंग क्या होता है कि एक तो अब वेबसाइट है, वेबसाइट क्या है, मान लेते हैं आपके बारे में डेटा लिखा हुआ है, आपका फोटोज लगाया हुआ है जो आपको दिख रहा है एज ए यूजर. और डोमेन हो गया, हम लोग डिस्कस किए उसका नाम. बट करेक्ट. ये जो हम लोग डिजाइन बनाए, मान लेते हैं आप एक कॉपी पेन लेके आप अपना वेबसाइट बना रहे, डिजाइन बना रहे हो, तो वो कहीं पे रखा जाता है. अभी आप अपना पिक्चर्स रखते हो तो आप अपने कंप्यूटर पे रखते हो या आईफोन पे रखते हो या फिर सर्वर पे रखते हो, गूगल के क्लाउड फोटोज वगैरह पे. तो करेक्ट. उसी तरह से वेब होस्टिंग क्या होता है कि आपका वेबसाइट का जो भी डेटा रहता है, जो भी डिजाइन डिजाइन जो भी आप बना रहे हो, पूरा का पूरा डेटा वो कहीं पे स्टोर होता है. तो वो चाहे हम लोग ब्लू होस्ट में स्टोर करो, चाहे गोडैडी में करो, चाहे क्लाउड वेज में, ये सब कुछ बड़े वेब होस्टिंग है इंडिया में. तो वहां पे हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं जगह को, करेक्ट. उसको वेब होस्टिंग बोलते हैं. तो ये तीन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हम लोग को जानना है: डोमेन, वेब होस्टिंग और एंटायर वेबसाइट. करेक्ट. सो हाँ अगर मैं इसको कंसोलिडेट करके हाँ समझा सकूं, तो आप डोमेन तो कोई भी खरीद लेते हो. हाँ. हाँ, फिजिकल वर्ल्ड में क्या होता है, पहले घर खरीदते हो फिर आपको उसका एड्रेस मिलता है. आपने जो भी घर हाँ. खरीदा उसका एड्रेस मिलता है. डिजिटल वर्ल्ड में इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है. पहले एक एड्रेस खरीदते हो, आपने एक हम्म डोमेन खरीद लिया, जैसे पंकजअग्रवाल.com आपने एड्रेस खरीद लिया. हम्म. उस एड्रेस के लिए आप एक प्लॉट खरीदते हो जो है आपकी होस्टिंग. ठीक है. आपने पहले एड्रेस खरीदा, उस एड्रेस के लिए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने होस्टिंग खरीदी, और उस प्लॉट पे आपको जितना बड़ा घर, ऑफिस, फैक्ट्री जो भी बनाना है बना सकते हो, जो होती है आपकी वेबसाइट. यस. आप जो होस्टिंग लेते हो उससे बेसिकली क्या होता है, आपका जितना बड़ा घर है, सपोज आप एक यूट्यूब का एग्जांपल ले लो. हम्म जितने भी वीडियोस, अगर ये आप यूट्यूब पे देख रहे हो, तो ये वाला वीडियो भी हमने यूट्यूब के सर्वर पे अपलोड किया हुआ है, लेकिन यूट्यूब इसे होस्ट कर रहा है. तो ये पर्टिकुलर वीडियो को प्ले करने के लिए, स्टोर करने के लिए जो जगह लगेगी, वो हम्म सर्वर यूट्यूब के पास होगा. अब यूट्यूब एक बहुत बड़ी कंपनी, तो उनके खुद के सर्वर्स है, लेकिन हम जैसे कोचेस के साथ, बिजनेस ओनर्स के साथ, डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ बात करते हैं, हमें अपने सर्वर्स की जरूरत नहीं है, तो हम किसी और सर्विस प्रोवाइडर के, जैसे क्लाउडवेज या हम्म. ब्लू होस्ट या गोडैडी, इनके सर्वर्स हम रेंट करते हैं. वी पे फॉर देयर सर्विसेज. सो आपने डोमेन खरीद लिया एक सर्विस प्रोवाइडर से, आपने होस्टिंग स्पेस खरीद ली, उस होस्टिंग स्पेस पे आप एक वेबसाइट डिजाइन करते हो. बिल्कुल. तो ये तीन चीजें अलग अलग होती है. एक वेबसाइट अलग होता है, एक डोमेन अलग होता है, एक सर्वर अलग होता है.
I hope we've explained this to you. I'm sure आप में से काफी लोगों के पास कोई questions होंगे, and believe me, Pankaj is one of the best people to get answers to these questions. So if you have any question, try to be as elaborate in your question as possible and leave those questions in the comments below. Of course. We'll try and definitely get back to you with all the answers, and I hope you've at least liked this explanation. अगर आप पहली बार ये 3 कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिटी के साथ समझ रहे हो, तो भी आप हमें बताइए इन द कमेंट्स वेदर यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन और नॉट। सही है बात है? एब्सोल्युटली, लाइक कमेंट्स में पता चलेगा कि एग्जांपल्स पसंद आ रहा है, किस टाइप का रिलेट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, सो वी कैन गिव जो भी फ्यूचर एपिसोड्स होना है उसमें ट्विक कर सकते हैं अपना। Absolutely. यस So moving on to the whole concept of the website, Pankaj, you explained यस very well that if हमें चाहिए कि हमारा ऑडियंस, हमारा वेबसाइट, हमारा ट्रैफिक हमारे ही ओन्ड प्रॉपर्टी पे आए, तो हमें वो डोमेन पे एक वेबसाइट बना लेनी चाहिए, ताकि जो भी लोग हमारे पास आ रहे हैं, हम उनका एक डेटा बना सके, राइट? यस तो आप हमें एक बता सकते हैं कि एक वेबसाइट में इंपॉर्टेंट चीजों का क्या ध्यान देना चाहिए? हाउ डू आई डिसाइड वेदर अ वेबसाइट, लेट्स से, फॉरगेट अबाउट मी, मुझे तो कम पता है इन चीजों के बारे में, बट लेट्स से इफ आप किसी की वेबसाइट पे जाते हो, सो हाउ डू यू डिटरमाइन किसकी वेबसाइट अच्छी है या किसकी वेबसाइट खराब है, किसकी वेबसाइट अप्रोप्रिएट है, किसकी वेबसाइट में कुछ मिसिंग है? देखिए, वेबसाइट में तो दो पार्ट्स होता है। एक तो हाँ कि जो जी। सामने दिख रहा है हम लोग को यूआई, करेक्ट। कितना सुंदर दिख रहा है, वो एक इम्पोर्टेंट चीज होता है। चीजें हम लोग खोज रहे हैं तो कितना फास्ट हम्म नेविगेट कर पा रहे हैं। एक हम्म एक जनरली आप देखोगे अमेजोन को, फ्लिपकार्ट को, सब एक पैटर्न फॉलो करते हैं कि ऊपर हम्म आपका नेविगेशन बार रहता है, मेन्यू, होम पेज, कॉन्टैक्ट अस, ये सब। तो ये कुछ स्टैंडर्ड सेट रहता है कि इसी तरह से देना होता है जनरली। ऑफ कोर्स आप हम्म कोई कोई क्रिएटिव ज्यादा बना सकता है, बट एक बेसिक पैटर्न होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि हमको कॉन्टैक्ट बटन खोजना है कि कैसे कॉन्टैक्ट करे, तो 2 साल तक कॉन्टैक्ट बटन खोज रहे हैं तो करेक्ट। वो सब नहीं होना चाहिए। एक बेसिक सा यूआई, मतलब वेबसाइट नेविगेटेबल होना चाहिए पूरा, आराम से हम लोग आराम से ये सब कर सके। हम्म फिर आपका डोमेन नेम के बारे में बात करेंगे अगर, तो डोमेन नेम भी होता है कि शॉर्ट एंड सिंपल रहना चाहिए। पंकज अग्रवाल डॉट कॉम, चलो ठीक है, 2 वर्ड का है। हेलो दिस इज पंकज अग्रवाल डॉट कॉम, वो थोड़ा कौन टाइप करता है उतना, भले आजकल लोग टाइप भी नहीं करते, बट आप अगर विजिटिंग कार्ड बनवा रहे हो, कहीं पे लिख रहे हो, तो हेलो करेक्ट। दिस इज पंकज अग्रवाल डॉट कॉम थोड़ी लिखोगे। तो जितना करेक्ट। शॉर्ट एंड स्वीट हो, और वो डोमेन का हो गया। उसमें नंबर्स आप अगर बिजनेस में ही नंबर से तो डाल सकते हो, जैसे कोई हम्म रेस्टोरेंट है, A to B रेस्टोरेंट, तो वो डाल सकता है। बट हम्म अगर नहीं है तो नहीं डालना चाहिए। पंकज अग्रवाल ऑफिशियल 2.com, ये सब अवॉइड करना चाहिए। हम्म तो ये सब कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस हो गया डोमेन का। हम्म और डोमेन अब बहुत तरह का आता है। एक तो .com हो गया, फिर .net भी होता है, .in होता है, और उसमें भी अपना प्रेफरेंस होता है। लाइक मुझे तो लगता है कि जो नाम मिल जाए, अच्छा लग रहा है, ले लो। जैसे किसी किसी का होता है, आप बता रहे थे मुझे कि मुझे .com ही पसंद है, .com लेंगे पंकज मतलब आपके लिए, आपको जो लेना है तो वही .com लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। बट मुझे लगता है कि बहुत सारे एक्सटेंशंस कुछ काम के लिए बनाए, जैसे कि .club हो गया, .site हो गया, पंकज अग्रवाल .site। तो जिसको जो मिल जा रहा है ले लो। और ये, करेक्ट। तो आपका क्या मानना है इसके बारे में, डोमेन के बारे में? ओके, सो जो डॉट कॉम होता है, पंकज अग्रवाल एक ब्रांड नेम हो गया, हाँ। और पीछे जो डॉट कॉम होता है वो एक, समझ लीजिए जैसे ये एक पहचान होती है, समझ लीजिए हम्म सिटी हो गई। इंटरनेट पे आप समझ लीजिए बहुत सारी सिटीज है, डॉट कॉम सबसे बड़ी सिटी है, डॉट क्लब, डॉट इन, ये सब अलग अलग सिटीज है, ठीक है? हम्म अब डॉट कॉम इतनी पॉपुलर सिटी है कि हर इंसान को सबसे पहले दिमाग में डॉट कॉम आता है। यस अब मैं पर्सनली थोड़ा ब्रांड ओरिएंटेड हूँ, मैं थोड़ा कस्टमर सेंट्रिक ओरिएंटेड हूँ, तो मुझे पता है कि जैसे ही अगर किसी को आपने अगर अपना विजिटिंग कार्ड दिया, अगर आपने बताया कि ये मेरी वेबसाइट है, तो हम्म सबकॉन्शियसली लोग एक डॉट कॉम ही एक्सपेक्ट करते हैं, वो तो है। ठीक है ना? जैसे अगर सपोज मैं आपको पूछ लूँ, पंकज आपका घर कहाँ है? तो मैं हम्म ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे बताओगे कि आपका घर किसी सिटी, टाउन, विलेज में। हम्म अचानक से अगर आप बोलोगे कि नहीं आप मिडल ऑफ द ओशन में रहते हो, आप एक बोट में रहते हो, तो वो चीज़ को मुझे हज़म करने को टाइम लगेगा, राइट? हम्म लाइक ये तो अलग है, लोग ऐसे नहीं रहते हैं। या आप बोल दोगे कि आप किसी झाड़ में, ट्री हाउस में रहते हो, या आप बोलोगे कि आप एक एरोप्लेन में रहते हो, आप हवा में कहीं पे कुछ आपने व्यवस्था बनाई है, आप हवा में रहते हो। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। इन हाँ। किसी में किसी भी तरह का गड़बड़ नहीं है, आप अंडरग्राउंड रहते हो। ये सारी हम्म चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन लोगों का साइकोलॉजिकल एक्सपेक्टेशन क्या है कि लोग यस घरों में रहते हैं। यस, जैसे ईदर कि अ मुझे, हाउस। हाँ, मुझे हाँ। भी एक एग्जांपल याद आ रहा है इससे। जैसे कि
कल मेरे वाइफ के साथ हम गए थे मोबाइल नंबर लेने, सो हाँ मोबाइल नंबर का भी एक्सपेक्टेशन होता था कि अगर 9 से करेक्ट चालू हो रहा है तो लगता है कि हाँ वो मोबाइल नंबर है। 8 करेक्ट सीरीज भी आता है, 7 सीरीज, 6 सीरीज भी आ रहा है, लेकिन वो सब लगता नहीं है कि मोबाइल नंबर है, लगता है लैंडलाइन है या कुछ कंपनी का फोन आ रहा है। तो कुछ उसी करेक्ट तरह का .com और .in या फिर कुछ अलग एक्सटेंशन का बात हो गया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सो उसी तरह से जो .com .in .club .ai ये सारे को, इन सारी चीजों को टीएलडीज कहते हैं। यस। अब मैं बिना .com वाले किसी भी ब्रांड नेम को, किसी भी वेबसाइट को हाथ भी नहीं लगा। मेरे पास paycheck to profit.com है, मेरे पास mremojical.com है, मेरे पास बहुत सारे डोमेन्स है, मनोवनास.com है, मनोवनास.inc.com है जो मेरा कंपनी का नाम है। ये सारे, अगर इनमें से किसी भी ब्रांड में सपोज मुझे mremojical.com नहीं मिलता, तो मैं मिस्टर इमोजिकल एज अ ब्रांड को बनाता ही नहीं, जो मेरा एक्चुअली मनीष आहूजा .com के साथ हुआ है। मनीष आहूजा जैसे मेरे अभी स्पेलिंग है रेगुलर MANISHAHUJA.com, ये किसी दूसरे मनीष आहूजा ने पहले ही खरीद के रखी हुई है। अब मैंने उनको कांटेक्ट भी किया है, मैंने उनके साथ बात भी की है कि आप मुझे ये डोमेन, आई विल बाय इट फ्रॉम यू एट अ प्रीमियम, बट वो नहीं बेचना चाहते। ही बॉट दैट डोमेन वे बिफोर मी, सो इट्स ओके। सो बिकॉज आई डोंट वांट टू गो ऑन अ manish.ahooja.in, manish.ahooja.me, मैंने मनीष आहूजा एज अ ब्रांड नेम को जैसा है वैसे का वैसा रखा है। मेरा पर्सनल ब्रांड नेम या मेरा पर्सनल ब्रांड मिस्टर इमोजिकल पे बनता है। क्यों? क्योंकि मिस्टर इमोजिकल .com मेरे पास है, paycheck2profit.com मेरे पास है। मैं कोशिश करूंगा, आई हैव लर्नड इन लाइफ नेवर से नेवर, बट मैं कोशिश ये करूंगा कि जहां तक हो सके मैं कोई भी ऐसा ब्रांड नेम ना बनाऊं जिसका मुझे .com ना मिल सके। यस। ये मेरी पर्सनल चॉइस है। नहीं वो सही भी है, क्योंकि वो कुछ हद तक रैंकिंग में भी या साइकोलॉजी में भी काम आता है। जैसे कि मान लेते हैं अगर गूगल.com का बात करें, तो बहुत लोग करेक्ट देखता है इंडिया से ओपन करेंगे हम लोग गूगल.com भी, तो google.co.in पे रिडायरेक्ट कर देता है। बट करेक्ट एक उनका भी ब्रांड होता है गूगल.com, अमेजोन करेक्ट डॉट कॉम, हर चीज का .com होता है पहले, फिर जाके वो करेक्ट रिलेवेंट कंट्री में रिडायरेक्ट करता है, अमेजोन.in बाद में रिडायरेक्ट करता है। करेक्ट सो वो जब आप ब्रांड ग्रो कर लोगे तो आप मल्टीपल एक्सटेंशंस भी रख सकते हो, बट प्राइमरी एक्सटेंशन तो .com रखना प्रेफरेबल ही रहता है। मेरा भी खुद वैसा ही एग्जैक्टली है। आई एग्री। हाँ, तो ये कोई भी तरीके का कंपल्शन नहीं है और ये किसी भी तरीके का जजमेंट नहीं है। अगर यस। आपको कोई भी दूसरा टीएलडी पसंद आता है, हमें सपोज .com एज अ सिटी पसंद है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका वेबसाइट किसी दूसरी सिटी में भी बहुत अच्छे से बन सकता है, किसी दूसरे टीएलडी में, प्लीज अपने ग्रोथ को हमारे परसेप्शन के हिसाब से ना रोकिए। यस। .club यस। .ai .in जो आपको टीएलडी पसंद आता है आप ले सकते हैं। टेक्निकली कंप्यूटर्स के हिसाब से, इंटरनेट के हिसाब से, सर्वर्स के हिसाब से, सर्च इंजिन के हिसाब से हम्म। बहुत कम फर्क पड़ता है। 99.9% यस। कोई यस। फर्क नहीं पड़ता है आपके वेबसाइट का टीएलडी क्या है। ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, इसलिए मैं बोलता हूँ मैं .com के आगे नहीं जाता हूँ। यस। आप क्या चूज करते हैं ये आपके ऊपर है। डेफिनेटली। तो हाँ एक जी। तो हो गया हम लोग बात किए डोमेन एक्सटेंशंस का, कि वेबसाइट बनाते हाँ समय और क्या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए, तो डोमेन एक्सटेंशन का बात किया और डोमेन के बारे में बात किया, शॉर्ट एंड स्वीट रखना चाहिए। उसके करेक्ट। अलावा हम लोग यूआई का बात किए थे कि हाँ नेविगेशन आसान होना चाहिए, प्लस ब्रांडिंग इन टर्म्स ऑफ बेसिक ब्रांडिंग, बहुत ज्यादा ब्रांडिंग पे तो चलो इनिशियली हो सकता है कोई ना फोकस कर पाए, बट एटलीस्ट बेसिक्स, जैसे कि वेबसाइट का फॉन्ट्स, हम्म कलर्स, कि हम्म। वो कलर पैलेट, जब आप किसी डिजाइनर से लोगो बनवाते हैं तो आपको कलर पैलेट देता है कि ये 2-3 कलर यूज करना है, बस वही 2-3 कलर यूज करना चाहिए ताकि पूरा एक थीम आए, ना कि एक रेम्बो करेक्ट बनाना है कि 15-20, अनलेस एंड अनटिल आपका वो निशी कुछ अलग ऑफ हो, कोर्स। कहीं कहीं होता है, दैट इज अदर थिंग। बट आप अवॉइड करिए, मतलब कोशिश करिए कि आपका पूरा एक ब्रांड फॉलो हो, फॉन्ट्स कंसिस्टेंट रहना चाहिए। अगर हेडलाइन 4 जगह लिख रहे हो तो चारों का हेडलाइन का साइज सेम रहना चाहिए, पैराग्राफ का साइज सेम रहना चाहिए, सबका फॉन्ट सेम रहना चाहिए। तो ये सारा ब्रांडिंग एस्पेक्ट जो भी होता है बेसिक, आप यूट्यूब करोगे 1-2 वीडियो मिल जाएगा। इन फ्यूचर हम लोग ब्रांडिंग के बारे में भी एक वीडियो कर लेंगे श्योर। डिटेल्स में। तो ये सब ब्रांडिंग एस्पेक्ट्स भी आपका सेम होना चाहिए। करेक्ट। ठीक है। और ब्रांडिंग में मनीष आप कुछ ऐड करना चाहोगे क्या अपनी तरफ से? मतलब जैसे आपने बताया, ब्रांडिंग तो अपने आप में एक पूरा लंबा एपिसोड है, बट हाँ, for me brand starts with what exactly is the reason why you're doing your business। आपका, हम्म। आपके रीजन से आपका कौन सा प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, किस कस्टमर के लिए सॉल्व करोगे, वाई आर यू अ गुड पर्सन टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम फॉर देम। उस बेसिस पे आप अपना ब्रांड नेम कैसे बनाओगे, उस ब्रांड नेम के हिसाब से आपके टारगेट ऑडियंस के हिसाब से आप अपने ब्रांड कलर्स चूज करोगे, फिर आप अपना लोगो बनाओगे,
ये सारा अपने आप में एक प्रोसेस है। मतलब ये मुझे लगता है मैं चाहूँ तो इसके ऊपर एक दिन या एक वीकेंड का पूरा एक प्रोग्राम या वर्कशॉप कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे यस। लगता है ब्रांडिंग इज अ वन टाइम एक्सरसाइज। डज दैट मीन इज ब्रांडिंग फॉर एवर? नो। Your brand name may be forever, but you can keep हम्म। changing the look of your brand. But again, you can't change that look of the brand every 2 months or 3 months. That will not serve the purpose. जैसे यस। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरा मेन बिजनेस फिर से रीस्टार्ट करने के पहले मुझे मेरा पेचेक टू प्रॉफिट और मिस्टर इमोजिकल के लिए न्यू ब्रांडिंग, न्यू लोगोज, न्यू कलर्स मुझे सब स्ट्राइक हो गए। तो हम्म। द रीजन आई एम सेइंग दिस सो कॉन्फिडेंटली एट द मोमेंट इज बिकॉज वेरी रिसेंटली मैंने ही अपनी रीब्रांडिंग की है। मेरा पेचेक टू यस। प्रॉफिट का लोगो जो पहले था, जो कलर्स थे, मैं वहां से थोड़ा शिफ्ट होकर मैंने न्यू लोगो चूज किया। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने अपने लिए भी किया। अगर आप चाहें तो मैं 2 मिनट पेचेक टू प्रॉफिट के लोगो के बारे में मैं 1 मिनट में बता सकता हूँ कि मैंने ऐसा लोगो क्यों चूज किया एंड हाउ डज इट कनेक्ट टू द होल ब्रांडिंग एक्सरसाइज दैट आई स्पोक अबाउट। यस, बता सकते तो उसके लिए हम लोग को लोगो भी दिखाना पड़ेगा ना, शेयर नॉट करके। रियली, मतलब वो इजीली कहीं पे भी दिख जाएगा। बाय द टाइम व्हेन यू आर वाचिंग दिस एपिसोड, जस्ट गो टू paycheck2profit.com एंड यू विल प्रोबेबली सी द न्यू लोगो। हम्म। बट आइडिया सिंपल और कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लोगो भी नहीं है। इट्स अ एरो व्हिच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अप, ओके। ठीक है ना, इन ग्रीन कलर। नाउ व्हाई? बिकॉज पेचेक टू प्रॉफिट, सो पेचेक टू प्रॉफिट, इट्स अ जर्नी, and that journey is going taking my participants and my audience towards their progress, which is हम्म। why I took a arrow which is pointing towards the north side to the right. And because I'm talking about financial growth, because I'm talking about wealth, I chose green color because green is associated with wealth, green is associated with money. तो अब देखने के लिए ये बहुत फंडामेंटल लगेगा, देखने के लिए ये बहुत सिंपल लगेगा, बट जितना हम्म। सिंपल हो उतना ही ज्यादा अच्छा है। Take the best brands in the world. Apple has a very simple logo. Nike has a very simple logo. All the other brands that you can think of generally have a very simple logo. यस। So उस हिसाब से ब्रांडिंग अपने आप में एक बहुत इन डेप्थ टॉपिक है। To create a good brand, you also need to understand your psychology, your reason to want to do a business. So it's a very detail oriented topic. यस, जो हम लोग बात किए अभी, जैसे मैंने बात किया कि कलर्स यूज करना चाहिए, कंसिस्टेंट फॉन्ट, वो तो विजुअल एलिमेंट्स हो गया। फिर Correct. उसके बाद आप बता रहे हैं कि उससे पहले भी चालू हो जाता है, कलर्स तो बाद में आता है, उससे पहले ही चालू हो जाता है कि मिशन क्या है, विजन क्या है, आपका टोन क्या है बात करने का, आप कैसे अपने आप को रखना चाहते हो मार्केट में, कि आपका एटीट्यूड क्या रहेगा ब्रांडिंग के लिए। एब्सोल्युटली, आप कौन से कलर्स चूज करते हो, आपको क्या सिग्निफाई करना है अपने ब्रांड के साथ। काफी बार if you want to create a fun vibe and let's say your target audience is women or girls, Nykaa ले लीजिए, Nykaa as a good example. हम्म। The reason why Nykaa's branding is absolutely bold pink is because they're looking at cosmetics, they're looking at skincare, they're focusing predominantly on women, and they wanted to stand out because in when Nykaa was launched, they did not have Indian market did not have a very strong presence of a established e-commerce and a retail brand for skincare and cosmetics. That is why Nykaa stood out. यस। Every aspect of your brand, the font, the color, the brand name, the domain that you buy, everything has a reason, everything has a purpose. And how do you derive that purpose is the entire branding exercise. यस। एंड स्टार्टिंग के लिए आई थिंक हम लोग बस बेसिक से चालू कर सकते हैं, बिकॉज Of course. मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हम लोग बहुत सारी चीज डिस्कस कर लिए, तो कहीं लोग इस पे ना अटक जाए कि अरे पहले ब्रांड बना लेते हैं बहुत अच्छा सा, फिर ही जाके अब चालू कर पाएंगे। तो आप उसके कितनी भी उसके लिए आप मेहनत क्या कर कहोगे? लीजिए, आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, you will end up making things better. यस। ठीक है ना? To start with, just choose something which is clean. ठीक है ना? पेचेक टू प्रॉफिट सिर्फ अगर ये 3 वर्ड्स में एक पर्टिकुलर कंसिस्टेंट फॉन्ट में लिख लेता तो भी ये मेरा ब्रांडिंग हो जाता। आप लोगो बाद में डिजाइन कर सकते हो, एवरीथिंग कैन कम लेटर, एवरीथिंग। यस। आप मेरा केस ले लीजिए, मैं सब कुछ करने के बाद में बिकॉज ऑफ द सिचुएशन दैट आई एम इन, बिकॉज आई केम अप विद दिस आइडिया, मेरा पूरा ब्रांडिंग चेंज हो रहा है। तो उल्टा मैंने अभी तक जितना मेहनत किया था सारा का सारा मुझे रीवर्क करना पड़ेगा, बट आई एम एब्सोल्युटली ओके विद इट। बट आर यू ओके विद इट? सपोज आप 6 महीना 1 साल लगा लोगे एक ब्रांड बनाने के लिए, ब्रांडिंग करने के लिए, और वापस आपको किसी कारण उसको चेंज करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे?
you'll feel you'll feel demotivated, you will feel disheartened. Don't do that. Start, make it better. Start, keep improving. Start, keep tweaking. यस, इनफैक्ट मार्केटिंग का हर चीज, मार्केटिंग हो गया, ब्रांडिंग हो गया, सेल्स हो गया, ये तो हर चीज को लाइफ टाइम इंप्रूव करने वाला चीज है, हर कुछ को लाइफ टाइम बिजनेस इंप्रूव के हर करना है। चीज को, सिर्फ यस, मार्केटिंग नहीं, बिजनेस के हर चीज को, हाउ डू यस, यू यस, सेल, हाउ डू यू अप्रोच योर कस्टमर, हाउ डू यू डू योर एवरीथिंग। एब्सोल्युटली। हाँ ठीक है, तो अब हम लोग इसमें बात किए थे अभी डोमेन नेम के बारे में, यूआई के बारे में, और वेबसाइट के कैसे हाँ। ब्रांडिंग वगैरह के बारे में। डू अब यू सब वांट टू ऐड एनीथिंग एल्स अबाउट द बेसिक्स ऑफ द वेबसाइट, और एक, यस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रह गया है, बताइए। जिसमें वेबसाइट फास्ट होना चाहिए। हाँ, इसके बारे सबसे में जरा सबसे बताइए, इंपॉर्टेंट चीज बिकॉज है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट पीपल टेंड टू मिस आउट ऑन। क्यों एक वेबसाइट फास्ट होना चाहिए? यस, ये अगर इसको हम लोग एड्रेस से कंपेयर कर ले, तो हम्म। घर बहुत आसानी से, मतलब एग्जांपल बैठ नहीं रहा है, बट ठीक है, कि घर कहीं कोना में नहीं होना चाहिए कि इंसान खोजते रहे, फिर खोज के वापस पिज्जा डिलीवरी बॉय वापस चला जाए कि हमको डिलीवरी नहीं हम्म करे, या फिर पिज्जा डिलीवर करे तो बहुत फास्ट डिलीवर करना चाहिए। लेट से हम्म। डिलीवर करेगा, ठंडा हो जाएगा, तो खाने का मजा नहीं आएगा। तो करेक्ट। वेबसाइट जब खोल रहा है कोई, अभी हम, मेरा भी क्वेश्चन आता था पहले कि अभी तो 3G का जमाना है, 4G का जमाना है, 5G का जमाना है, तो फास्ट से क्या ही फर्क पड़ता है, क्लिक करेगा तो फटाक से तो खुल ही जाएगा। तो हम्म। एक तो ये बहुत ज्यादा स्लो वेबसाइट जो आप खोल रहे हो, और खाना वाना खा कर आ रहे हो तब खुल रहा है, तो कुछ फॉल्ट है पाप है। वेबसाइट में। नहीं नहीं, हाँ। वो पाप है। अगर इतना टाइम लग जाए आपकी वेबसाइट को लोड होने के लिए, तो आप कुछ कुछ गलत नहीं कर रहे, आप कुछ भी सही नहीं कर रहे हो। हाँ, मतलब अब 2G का जमाना में रह गए हो अभी भी, तो आप सोच रहे हो हाँ बाकी लोग भी है, तो वो तो करना ही नहीं है। कुछ टेक्निकल एरर वगैरह होगा, फिक्स करो। बट हाँ मान लेते नॉर्मल वेबसाइट भी होता है, एक पंकज अग्रवाल डॉट हाँ। कॉम आप खोलोगे, 3-4 सेकंड में खुल रहा है, वर्सेस करेक्ट एक होता है कि और भी फास्ट हो सकता है, जिसमें आपको करेक्ट। पता ही नहीं चलेगा, क्लिक करते के साथ खुल रहा है। तो कुछ वेबसाइट फास्ट में ऐसा भी होता है कि पता ही नहीं चल रहा है दोनों में डिफरेंस, एक चाहे 5 सेकंड में खुल रहा है, चाहे 2 सेकंड में खुल रहा है। तो एज ए यूजर आपको डिफरेंस ज्यादा फील नहीं होगा, लेकिन जब आप एड्स में पैसा डालते हो, मान लेते दस हम्म हजार रुपया पर डे लगा रहे हो, और मान लेते हम्म 10 रुपए पर क्लिक आ रहा है, तो मान लेते 1,000 लोग आपको वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, एक रफ हम्म नंबर्स 1,000 लोग हम्म। वेबसाइट विजिट कर रहे हैं। तो हम लोग को ऐसा नहीं पता चलता, बट आप डेटा देखोगे तो होता है क्या कि 1,000 लोग में सिर्फ कुछ लोग ही वेबसाइट तक पहुंचते हैं, लाइक 70-80% लोग वेबसाइट तक पहुंचता है यूजुअली। वो अच्छा हम्म। नंबर होता है, 70-80% भी अगर पहुंच जा रहा वेरी है गुड। हाँ। 1,000 में, इट्स अ ग्रेट नंबर। तो आप डेटा, हम्म जब हम लोग आगे फ्यूचर सेशंस में बात करेंगे डेटा कैसे एनालिसिस करते हैं, तो टूल्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप मॉनिटर कर पाओगे कि 1,000 हम्म में से अराउंड 800 यूजर आपका पहुंचा। तो चलो, ये आपको हम्म। पता है कि ये स्टैंडर्ड रहता है, बाकी 200 यूजर कुछ ना कुछ कारण से क्लोज कर देता है। करेक्ट। बट यही चीज अगर आपका 1,000 में से 500 यूजर होने लगा, या उससे भी हम्म। कम होने लगा, तो वो आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि आपका पूरा रेवेन्यू उस पर डिपेंड कर रहा है ना कि कितना लोग आ रहा है। अगर 800 लोग आ रहा है, तो 800 के हिसाब से वो लोग बाय करेगा, सब परसेंटेज में गेम चल रहा है। 800 में से हो सकता करेक्ट है 10% अगर कन्वर्ट होने वाला था, तो 80 लोग जो प्रोडक्ट बाय करने वाला था, अब 500 में से 50 लोग बाय करेगा, टेन करेक्ट परसेंट वापस से। तो करेक्ट। आपका तो अचानक से 30 सेल्स कम हो गया ना। या फिर अगर 400 ले लो, एब्सोल्युटली। अगर स्पीड हाफ हो रहा है, एक जगह 4 सेकंड था, एक जगह 2 सेकंड था, अगर मान लेते उसकी वजह से कुछ कारण से स्पीड भी हाफ हो रहा है, विजिटर्स भी हाफ हो रहा है, तो आपका रेवेन्यू भी तो सीधा सीधा हाफ हो गया ना। सीधे करेक्ट इतना डायरेक्ट, मतलब पूरा का पूरा रेवेन्यू पे इम्पैक्ट करता है आपका स्पीड्स। करेक्ट। हाँ, तो ये ये होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि the amount of people clicking on your ad and actually waiting for your website to load is friction. इस फ्रिक्शन यस, को आप जितना कम कर सको, उतने ही कम लोग ड्रॉप आउट होंगे। यस। एक 10-15% ड्रॉप आउट रेशियो नॉर्मल है, 20% तक एक्सेप्टेबल है। लेकिन एनीवेयर बियॉन्ड 20%, अगर आपका ड्रॉप आउट हो रहा है फ्रॉम द पीपल, आप जो भी एड चलाओगे, आप जो भी देखोगे, आपको पता चलेगा हाउ मेनी पीपल क्लिक्ड ऑन योर एड, एंड यू कैन ऑल्सो एनालाइज द अमाउंट ऑफ पीपल हु केम ऑन योर वेबसाइट थ्रू द एड। आपको यस, ऐसे रेशियो मालूम पड़ता है, जो परसेंटेजेस की बात कर रहे थे। तो आपको अगर सपोज आपका एड प्लेटफॉर्म बोलता है कि 100 लोगों ने आपकी एड पे क्लिक किया, और आपका वेबसाइट एनालिसिस बोलता है कि आपके वेबसाइट पे एड के थ्रू 80 लोग आए, तो ये जो 20% का जो ड्रॉप ऑफ रेशियो है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी बेरेबल है। 15% एक्सेप्टेबल है, ठीक है। बट इफ दैट नंबर इज गोइंग बियॉन्ड 20%, 25, 30, 35, 40, अब क्या हो रहा है, आप एड वाली वेबसाइट को तो पैसा दे रहे हो उस क्लिक का। अगर एड वाली वेबसाइट ने बोल दिया कि 100 लोगों ने क्लिक किया, तो दे विल चार्ज यू
ऑफ कोर्स। फॉर एवरी क्लिक, लेट्स से 10 रुपीज। तो अगर 1000 लोगों ने आपकी वेबसाइट पे क्लिक किया है आपकी एड पे, तो आपने 10,000 रुपया तो अपनी पॉकेट से निकाल दिया। हम्म। लेकिन उस 10,000 से आपको सर्विस क्या मिलनी चाहिए? आपको 1000 लोगों की ट्रैफिक मिलनी चाहिए। अगर आपको ट्रैफिक मिल रही है सिर्फ 400 लोगों की, 500 लोगों की, तो 500 लोगों को आपने बुलाने के पैसे तो दे दिए, लेकिन वो आपके पास हम्म। आए ही नहीं। ये आपका सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। वेरी 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 वेल एक्सप्लेन पंकज, यस। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। यस थैंक यू, एंड आई एम श्योर। यस हाँ, एंड मनीष जी, ठीक है, अच्छा लगा। आई होप ऑडियंस को भी ये पसंद आए। एंड मनीष जी, एक ये बताना चाह रहे हैं, हम सिर्फ ऐड के लिए ये चीज नहीं है, हर ऑर्गेनिकली भी जगह पे, सर्च इंजन से भी आ हर रहा है, जगह पे, कहीं से हाँ, भी आ रहा है। तो ट्रैफिक तो आपका ट्रैफिक है ना। ट्रैफिक मतलब ट्रैफिक क्या होता है? अभी हम लोग आज बात कर लेते हैं हल्का से ट्रैफिक बेसिकली, कि जो भी हम लोग बात करें, इतना लोग लैंडिंग पेज पे आ रहा है, वो ट्रैफिक हो गया। ट्रैफिक मतलब करेक्ट, आपका स्टोर पे कितना लोग आ रहा है, आप उसको रिलेट करेक्ट, करो। आपका वेबसाइट और लैंडिंग पेज नहीं है, ये पूरा का पूरा आपका दुकान है, ऑफिस है, जो भी है। करेक्ट, तो करेक्ट, वहां पे कितना लोग आ रहा है? आपका दिन में 100 लोग आना था, 50 लोग आ रहा है। तो वो करेक्ट, एग्जांपल लेकर भी आप समझ सकते हो कि गजब लॉस करवा रहे हो आप उसको। बहुत बहुत ज्यादा। ठीक तो है। हाँ, तो ये, I hope you've हम्म। gotten all the pointers. Whatever pointers you had, just click your notes and share it with us on Instagram, and we'll definitely share it across on our social media platforms so that more people can learn through you. Continuing with the concept beyond website, यस। Pankaj, now let's talk about the next very important aspect of a business of the registration system is a professional email. अब यस। लोग बोलते हैं कि भाई मैं ईमेल के लिए पैसे क्यों दूं? हम्म। अच्छा खासा xyz@gmail.com ईमेल सबको फ्री मिलता है, yahoo.com वाला ईमेल फ्री मिलता है। आप ये क्या जबरदस्ती मुझसे खर्चा करवा रहे हो? और मनीष आहूजा एट paycheck2profit.com क्यों बनवा रहे हो? अगर मुझ सपोज मैं ऐसा हाँ। क्लाइंट होता, पेचेक हम्म। टू प्रॉफिट आपका क्लाइंट होता, हम्म। और आप मुझे बोलते मनीष आपको ये महीने का खर्चा करना पड़ेगा 200, हम्म। 300, 500 डिपेंडिंग ऑन वट एवर सर्विस यू हम्म। बाय फ्रॉम गूगल या वट एवर। और मैं अगर आप बोलता लेकिन पंकज मुझे ये प्रोफेशनल ईमेल खरीदने की क्या जरूरत है, मेरा मनीष आहूजा gmail.com के साथ भी तो काम चल रहा है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, मुझे तो मनीष जी इसमें एग्जाम्पल कुछ अच्छा नहीं आ रहा है, बट मैं सीधा यही बोलता हूँ लोगों को कि आप दो दो ईमेल आपको आता है। एक पंकज abcd3214878910@gmail.com, और दूसरा है hello@pankajagrawal.com। तो हाँ। आप दोनों ईमेल, दोनों से आपको एक ईमेल आ रहा है, बट आप देखकर कौन सा आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, आप खाली वो देख लो कि अच्छा कौन सा लगेगा। ये हम्म। मेरा तरीका है कि जो अच्छा लग रहा है वही करना चाहिए, क्योंकि जब मुझे अच्छा लग रहा है ये चीज, तो बाकियों को भी ये अच्छा लगेगा। इससे आपका बिजनेस का वैल्यू बढ़ रहा है, जहां पे पूरी दुनिया आपका फ्री डोमेन यूज कर रहा है। आप मतलब कुछ समझना होगा कि आप बिजनेस ओनर हो रहे हो। तो हम्म। पेज पेज चेक टू प्रॉफिट का बात करें तो पूरा एक बिजनेस खड़ा करने का सोच रहे हो, ब्रांड बनाने का सोच रहे हो। तो आप किसी करेक्ट। और का ब्रांड यूज करके अपना ब्रांड नहीं बना सकते ना। पे चेक टू प्रॉफिट @gmail.com, वो आप अपने हम्म। इंटरनल यूज के लिए कभी बना लिए, चलो ठीक है, स्टार्ट कर लिए। बट क्लाइंट को कम्युनिकेट करने के लिए उनको लगेगा कि जब खुद का ही प्रोफेशनल ईमेल नहीं है, तो फिर ये करेक्ट। दूसरा को, मतलब कैसा ही ब्रांड है? मतलब अगर 50, आजकल तो 50-50 रुपए से भी कम में मिल जाता है आपको प्रोफेशनल ईमेल। तो लगेगा हम्म। कि ये क्या सिखाएंगे हमको, अगर इनके पास खुद 50 रुपए स्पेंड करने के लिए नहीं है। बट हाँ, अगर आपके पास कुछ अच्छा सा एग्जांपल हो जिसको ऑफलाइन से हम लोग रिलेट कर सके, तो आप प्लीज वो एग्जांपल यूज करके, हम चाहेंगे आप हम लोग को एक्सप्लेन करो। अब एकदम डायरेक्ट 1 to 1 एग्जाम्पल नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ फनी सी चीज आई। हम्म। एक रिटेल स्टोर का एग्जांपल ले लीजिए, बता दीजिए आपको क्या खरीदने का मन हो रहा है फिलहाल? पिज्जा पिज्जा। पिज्जा। ये भाई साहब को पिज्जा बहुत पसंद है, ठीक है ना? अब आप इमेजिन करो, आप बैठ रहे हो किसी रेस्टोरेंट में जाके और आप ऑर्डर कर रहे हो पिज्जा, हम्म। और वो भाई साहब आपको बाजू वाले रेस्टोरेंट से उसके ही कटलरी में, उसके ही प्लेट में, अगर आपको उसके प्लेट के ऊपर, सपोज आप आए हो मनीष आहूजा पिज्जेरिया में, ठीक है, हम्म। और मेरे बाजू में है लेट्स से जयंत पिज्जा, हम्म। ठीक है। आपने ऑर्डर दिया मनीष पिज्जा को, लेकिन आपको जो पिज्जा सर्व होता है वो जयंत पिज्जा के प्लेट पे हो रहा है, या आपको जो बॉक्स मिल रहा है, अगर आपने घर पे डिलीवरी मांगी है, मैं आपको जो पिज्जा डिलीवर कर रहा हूँ, आपने ऑर्डर दिया मनीष पिज्जा को, लेकिन आपके घर पे डिलीवर हो रहा है जयंत पिज्जा के बॉक्स में। ये क्या हो रहा है? अब कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना? हाँ। आप बोलोगे यार ये क्या मजाक चल रहा है मेरे साथ। अब हाँ। मैंने मनीष पिज्जा को जो पैसे दिए हैं, क्या मैंने मनीष पिज्जा के लिए दिए हैं या जयंत पिज्जा के लिए दिए? और जयंत के, अगर जयंत का ही पिज्जा मुझे मंगवाना था तो मैं मनीष से क्यों मंगवा रहा हूँ? हम्म। ऑब्वियसली मनीष ने उसमें कोई ना कोई कमीशन रखी होगी, मैं ज्यादा महंगे में खरीद रहा हूँ। कॉन्फिडेंस मनीष पिज्जा में आपको नहीं आएगा। हम्म। और अगर आपको पसंद आ भी गया, तो आपने एक्चुअली पसंद किया क्या? मनीष पिज्जा पसंद किया कि जयंत पिज्जा पसंद किया? यस। तो
ये आपका email address, many a times that is going to be the first thing that people are going to get introduced to you on a personal level. When you enter into somebody's inbox, you are literally entering into their personal space. So when you're entering into their personal space with your own professional email, you are entering with a lot of authority. You are entering with a lot of Yes. credibility. उसके लिए आपका प्रोफेशनल ईमेल होना बहुत जरूरी है. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज्यादा जरूरी है, when you start using, when you start expanding your business, newsletters is going to be a very important aspect of your business. If let's say you are trying to send, if I am trying to send more than 50 or 100 emails every day using paycheck to profit at gmail.com, first Yes. of all, Google will block my email address, because any domain, any email address at gmail.com is not for business use, it's for personal use. पहली चीज. दूसरी चीज, your email will start hitting the spam box very, very, very quickly, because you're sending too many emails using a personal email address. Hmm. Third, because you can't send more than 50 emails a day, you are limiting the growth of your business. Now, my email address has the capacity to send more than 50,000 emails every day. Compare 50,000 to 500, 50 emails, 100 emails. There's a tremendous growth. That's 2000% growth over 50 emails a day. So accordingly, not having a professional email is you clearly saying, no, I want to run a very small business. I don't want too many clients. I don't want too many people. I don't want to build a big brand. Hence, if you don't want to do all of those things, first of all, I'm not sure why are you even here on Coach I Need Help, because we are talking to coaches who are going to build communities of thousands and thousands of people, which cannot happen without a good domain, without a good website, Yes. without a good professional email. यस मनीष जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे मुझे एक और इसका इम्पोर्टेंट चीज याद आया, ट्रस्ट. मान हाँ, लेते आप अमेजोन से सामान ऑर्डर कर रहे हो, कुछ भी शॉपिंग कर रहे हो, करेक्ट. अब आपको पता कैसे चलेगा वो कि ऑथेंटिक ईमेल है या फिर समथिंग समथिंग @gmail.com, अमेजोन @5678 @gmail.com, हाँ, फिर कल आ रहा है हाँ, 7829 @gmail.com. तो कहीं हाँ, से भी आ रहा है, आपको पता कैसे चल रहा है कि किससे, उस ब्रांड से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप तभी करेक्ट, ना ट्रस्ट करते हो उससे जब समथिंग @amazon.com आ रहा है या फिर .in जो भी करेक्ट, है उनका करेक्ट, डोमेन से. करेक्ट, तो ट्रस्ट भी करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम लोग अपना ब्रांड नेम रख रहे हैं पंकज अग्रवाल .com या paycheck to profit आपका, तो आपका यूजर आपको तभी ट्रस्ट करेगा ना कि हाँ एक्चुअल में ये ईमेल उनका है. जब आजकल ये सब फ्रॉड वगैरह का जमाना बहुत ज्यादा चल रहा है ऑलरेडी. इनफैक्ट ये भी तो एक रीजन होता है ना हर चीज. आपका किसी किसी का फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है, किसी का कुछ हैक हो जाता है. हैक होने का रीजन ही तो वो होता है कि उनको ईमेल आते किसी और जगह से, समथिंग करेक्ट. @gmail या कुछ और से, बट उनको लगता है कि फेसबुक से आया और क्लिक करके वहां पे आईडी पासवर्ड डाल देते हो और वो हैकर अपना स्टोर कर लेता है. तो एब्सोल्युटली. जब ये हम लोग को मतलब हर एंगल से आप देख लो ये इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है, इसको अवॉइड करना ही नहीं चाहिए कोई भी एंगल से देख लो. I'm sure by now we've sold the idea of having a good domain, having a good hosting service or a good website. You can also build your website using no code services if that's what you're Yes. looking for. That is something that I anyway recommend. And having a really good professional email, all these are inevitable. All these are non-negotiable in your business, Absolutely. correct? Absolutely. Pankaj, moving ahead, the next thing, now that we've established कि ठीक है, एक domain बन गया, एक website बन गई. हम्म. Because we are talking to digital service providers, because we are talking to coaches, because we are talking to people जिनका पूरा business ही digitally चलता है. Yes. एक बहुत important concept है जो मैंने, I'm shocked कि आज तक लोगों को इसके बारे में पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं पता है, which is a landing page. Can you please introduce the concept of a landing page and tell us what exactly is a landing page and why is it important, how is it used? And the reason why I'm telling Pankaj to do this is because this is his specialty. Matlab, literally, he is the person to go to if you want to get, if you don't know anything, and if you really want to set up your entire digital business, you can't find somebody as better than Pankaj. So please, Pankaj, Yes. please Sure. Thank you. enlighten us. हाँ जी. देखिए लैंडिंग पेज के लिए मेरे पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहा है. एक तो पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपका घर वाला Sure. एग्जांपल. जब आप डोमेन वगैरह हाँ, के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे, तो हाँ, प्लॉट ले लिया, वहां पे आप घर बनाना है. हाँ, तो या तो 50 फ्लोर का घर बना सकते हो, 2 फ्लोर 4 फ्लोर जैसा भी बना सकते हो. बट हाँ. एक बेयर मिनिमम रहने के लिए एक फ्लोर का तो एक घर चाहिए. मतलब एक मिनिमम Correct. एक स्ट्रक्चर है, एक रूम एटलीस्ट होना चाहिए वहां पे जहां पे आप रह सकते हो.
करेक्ट। सो लैंडिंग पेज भी वही है, एक बेयर मिनिमम हो गया। एक वेबसाइट होता है, वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस होता है। होम पेज हो गया, फिर आप क्लिक करोगे तो अबाउट पेज होता है, फिर दूसरी जगह क्लिक करोगे तो कॉन्टैक्ट अस पेज होता है। तो इसमें बहुत सारा नेविगेशन ऑप्शंस होता है। बट लैंडिंग पेज का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है ना वेबसाइट से, कि वो सिंगल वेब पेज टाइप का हो गया। वेबसाइट होता है करेक्ट। मल्टीपल मल्टीपल पेजेस वेबसाइट के अंदर, लैंडिंग पेज सिंगल पेज है जो बनता है सिर्फ एक चीज के लिए। मतलब अगर मार्केटिंग में आजकल ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है लैंडिंग पेज। अगर आपका प्रोडक्ट है, मान लेते हैं मैं बेच रहा हूँ कि हाउ टू बिकम अ डिजिटल कोच, 90 डेज का कुछ कोर्स है मेरा। तो एक तो हो गया मैं वेबसाइट बनाऊंगा जहाँ पे होम पेज है, अबाउट है, और मेरा 5-6 कोर्स के बारे में और चीज है। दूसरा हो गया मैं एक लैंडिंग पेज बनाता हूँ, एक सिंगल पेज है वेब पेज, जहाँ पे मेरा कोर्स के बारे में A to Z दिया हुआ है, सिर्फ उस कोर्स के बारे में मैं जिसका बात कर रहा हूँ। एक करेक्ट। पर्टिकुलर कोर्स के बारे में A to Z दिया हुआ है, उसके नीचे मेरे बारे में दिया हुआ है, उसके नीचे ये दिया हुआ है ये टाइमिंग्स कब कब होना है, क्या क्या पढ़ाई होगा, और मेरे पास स्टूडेंट का टेस्टिमोनियल्स दिया हुआ है। अगर आप देखोगे तो लैंडिंग पेज भी एक काइंड ऑफ वेबसाइट है, उसमें भी हम लोग करेक्ट। बहुत सारा डिटेल्स देते हैं। बट सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है ना लैंडिंग पेज और वेबसाइट का, कि लैंडिंग पेज में बाहर निकलने का ऑप्शन नहीं होता है, मतलब उसका सिर्फ सिंगल कॉल टू एक्शन होता है। तो करेक्ट। लोग हम मुझसे पूछते हैं लैंडिंग पेज क्यों बनाए, तो हम बोलते हैं कि इसलिए बनाओ ताकि जब एड क्लिक करके आपके लैंडिंग पेज पे आ रहा है, इनफैक्ट सबसे ज्यादा लैंडिंग पेज एड्स पे यूज होता है। करेक्ट। अगर एसईओ वगैरह से ट्रैफिक आ रहा है तो वेबसाइट पे ज्यादा वो चल जाता है, ब्लॉग पे चला जाता है। बट अगर एड चला रहे हो तो लैंडिंग पेज मस्ट है। अब दो जगह है, या तो आपका एक सिंगल सा पेज है जहाँ पे सिर्फ ऑप्शन जो है वो है कि रजिस्टर नाउ फॉर पंकज कोर्स, जो भी कोर्स है, एक ही ऑप्शन है, और दूसरा तीसरा ऑप्शन नहीं है, वो भले मल्टीपल टाइम्स दिया हुआ, बट उसका एम एक ही है, एक ही गोल है लैंडिंग पेज का, कि करेक्ट। लोगों को अपना वो एक्शन करवाना जो हम लोग कराना चाहते हैं, चाहे रियल स्टेट विजिट करवाना है, साइट विजिट है, या फिर मेरा कोर्स में इनरोल करवाना है, सिंगल एक्शन है। और उसके बारे में ऊपर से नीचे तक सारा कुछ दिया रहता है। तो अगर करेक्ट। मान लेते कोई ऐड चला रहा है, तो वो या तो वेबसाइट पे भेज सकता है या तो लैंडिंग पेज पे भेज सकता है। वेबसाइट पे भेजेगा तो हो सकता है यूजर कंफ्यूज होगा, कभी जाएगा कॉन्टैक्ट अस पेज पे, सोचेगा एक बार बात कर लेते, कोई फोन नंबर दिख गया तो कॉल कर लेगा, या फिर टेस्टिमोनियल्स चला गया, क्लिक करके यूट्यूब वीडियो पे चला गया, या फिर और भी कोर्सेज के बारे में देखने लग गया। उनको हम लोग समहाउ कन्विंस किए थे अपने ऐड से कि चलो तुमको कोच बनना है तो 90 डेज का प्रोग्राम में इनरोल कर लो। बट वहां आया तो देखेगा कि हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल भी है, या फिर पेचेक टू प्रॉफिट का भी मैं कहीं पे डाल रखा हूँ कि ये मेरे फ्रेंड का है, वहां पे जाके आप तो इधर उधर जाके पूरा ही भूल जाता है, वो लॉस्ट हो जा रहा है। करेक्ट। बट करेक्ट। अगर वही ऐड क्लिक करके सेकंड में वो लैंडिंग पेज पे आता है, तो वो उसका फोकस मेंटेन्ड है, उसको पता है करेक्ट। कि ये कोर्स है हाउ टू बिकम अ कोच 90 डेज का, और वहां पे क्लिक करके या तो आप रजिस्टर करेगा या तो क्लोज कर देगा। रजिस्टर परफेक्ट। कर लिया तो अच्छा है हमारे लिए, क्लोज कर दिया तो कोई बात नहीं, वापस से उसको रिटारगेटिंग ऐड दिखाएंगे, उसको कहीं ना कहीं से फिर से पहुंचेंगे, बट हम उसको कैप्चर कर सकते हैं। तो मेरे कहने का करेक्ट। मतलब ये है कि जब आप ऐड पे पैसा खर्चा कर रहे हो, तो आप चाहोगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपका वो एक्शन ले जो आप एक्शन दिलवाना चाहते हो उससे। उसमें आपका यूट्यूब एब्सोल्युटली। लिंक नहीं रहना चाहिए, सोशल मीडिया लिंक्स नहीं रहना चाहिए, सिर्फ एक लिंक रहना चाहिए जो आप एक्शन लेना चाहते हो, वो बटन बस। एब्सोल्युटली, वेरी 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 वेल एक्सप्लेन्ड। सो जस्ट अ क्विक सम अप, यस। अगर आप किसी पर्टिकुलर आप टेलीविजन देख रहे हो, और अगर आपने कोई पर्टिकुलर हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी को ले लीजिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के पास 100 प्रोडक्ट्स होंगे, लेकिन बहुत कम बार आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का ऐड देखोगे, आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ऐड देखोगे। उनका किसी सोप का ऐड हो गया, उनका किसी टूथपेस्ट का ऐड हो गया, उनका किसी शैम्पू का ऐड हो गया। वो पर्टिकुलर उस ब्रांड का ऐड कर रहे हैं जो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में हैमर करना चाहते हैं। तो बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम जब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो अपने ग्रोसरीज का, या अगर किसी आप सुपरमार्केट में जा रहे हो, या अपने किराना स्टोर में जा रहे हो, तो आप अब जाके, क्योंकि वो ब्रांड आपके दिमाग में छप चुका है, तब जाके आप उस ब्रांड के बारे में शॉपकीपर से बात करते हो, वेबसाइट पे उस प्रोडक्ट को ढूंढते हो, और आप उसको अपने कार्ट में डाल के ऑर्डर करते हो। द पर्पस ऑफ अ advertisement is to get customer to buy, get customer to take a decision, get customer to make a purchase out of your brand। ठीक है ना? यस। उस हिसाब से आपका डिजिटली भी सेम काम होता है। Let's say paycheck to profit, I have multiple products. I also create a lot of content. Manish Ahuja is a big component of paycheck to profit. So if I want, I will have multiple things on paycheck to profit website. But when you click on my ad, the sole purpose is
to get you signed up to my newsletter or to give you access to a free course or to call you for a webinar. So when, depending on which ad you see, the page that you will go to on my website is going to be a landing page. If you see the ad of sign up for my newsletters, you will only go to a page which will talk to you only about the benefits of signing up to my newsletters. If you go to a free course landing page, you will get access only to a free course. Over there, you will not know about the about the newsletters or the webinar. So what kind of customer behavior are you trying to create determines the purpose of the landing page, and then you get the landing page designed. Am I right, Pankaj? एब्सोल्युटली लाइक और अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एक रफ आइडिया देना चाहेंगे लोगों को, हाँ तो अगर एड पे क्लिक करके जो हम लोग बात कर रहे थे कि 100 लोग अगर लैंडिंग पेज पे आपका पहुंच रहा है सक्सेसफुली आफ्टर जो भी ड्रॉप ऑफ होना था, तो 100 में से यूजुअली अगर कुछ फ्री प्रोडक्ट रहता है आपका, तो हाँ 30% तो बेयर मिनिमम होता है जो लोग कन्वर्ट कर जाते हैं। अगर आपका फ्री कोर्स दे रहे हो या फ्री वेबिनार में रजिस्टर करवा रहे हो, तो 30, 40, 50% और कभी कभी उससे ज्यादा भी लोग रजिस्टर करते हैं। बट यही चीज अगर आप वेबसाइट पे ले जाओगे तो ये नंबर काफी सिग्निफिकेंट ड्रॉप आपको दिखेगा। तो एब्सोल्युटली आपको यहाँ से भी रेवेन्यू का लॉस हो रहा हो वापस से, हर जगह आपको मतलब आज हमको पता नहीं, आज हम रेवेन्यू का ही सब जगह बात करें क्योंकि बिजनेस का एम ही वो है कि रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना। correct. So basically, you're absolutely right, Pankaj. Because see, we're not necessarily talking only about the revenue. We're also talking about how do we serve the customer. यस एब्सोल्युटली। The idea is simple. आप ads click करवा के अगर उनको educate कर रहे हो landing page पे, you're getting them to the webinar or you're giving them a free product. If that or when that particular transition goes to become a customer, that's perfectly all right. Even if it does not become a customer, at least you know that is the journey that you've taken your participant to. There will be Yes. multiple people who will come only till the webinar. There will be Yes. multiple people who will only come to your free program or your newsletter. How do you keep nurturing them? How do you keep converting them to your customer is a completely different aspect, Yes. which we'll talk about in a different episode. But here we are talking about registration system. A landing page is the most important component of a registration system, so that you can actually, you can start a relationship with your audience. The moment Yes. somebody signs up on a landing page, that is where the relationship starts. How long does that relationship go on to? How do you keep nurturing that participant? How much business you derive out of that participant through the relationship that you've built is the journey. Absolutely. Yeah. So, Pankaj, tell me one thing. Yes. What we've spoken about, what are the components of a good website? Yes. Are there some components of a good landing page also? Yes. So मैंने अभी जस्ट एक खोल लिया है लैंडिंग पेज जस्ट फॉर रेफरेंस हाँ कि जी, जैसे आप कोई भी लैंडिंग पेज पे जाओगे, हाँ जी, किसी का भी लैंडिंग पेज पे ऐड पे क्लिक करके जाते हो, तो कुछ 7-8 एलिमेंट होता है जो कि मिनिमम होना ही चाहिए। जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि लैंडिंग पेज क्या है, लैंडिंग पेज का और वेबसाइट का सिर्फ एक डिफरेंस है कि लैंडिंग पेज एक चीज पे फोकस करता है, सिंगल एक्शन पे फोकस करता है, बट उसमें भी वेबसाइट की तरह सारा कुछ कंटेंट होना चाहिए। जैसे कि स्टार्ट हो रहा है, जैसे ही पेज खुल रहा है, तो एक तो पहले यूजुअली आप देखोगे टाइमर वगैरह आता है। अगर मान लेते हैं, अगर हम फ्री वेबिनार के एग्जांपल लेते हैं, करेक्ट, तो उसका भी 2-3 तरह का लैंडिंग पेज बनता है। एक तो बहुत छोटा सा लैंडिंग पेज हो गया, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर वन, लॉन्ग फॉर्म वेबिनार। द लॉन्ग फॉर्म लैंडिंग पेज, यस, जिसमें सारा कुछ कंटेंट दिया हुआ है, चाहे वो फ्री हाँ, कोर्स के लिए भी आप यूज कर सकते हो, मल्टीपर्पज के लिए यूज कर सकते हो ये लैंडिंग पेज। तो एक तो सबसे पहले हेडर में आना चाहिए आपका टाइमर वगैरह कि कुछ भी कि आज वेबिनार हम अगर मान लेते हैं आपका सैटरडे को है और आज हो रहा है फ्राइडे, तो वेबिनार स्टार्ट्स इन 24 आवर्स और एक काउंटडाउन टाइमर चलते रहेगा, इतना कम हो रहा है कम हो रहा है। उससे क्या है, थोड़ा सा अर्जेंसी क्रिएट हो जाता है, लोग करेक्ट, लोग थोड़ा ज्यादा उसमें बाय करना चाहते हैं या उस आइडिया में, करेक्ट, करेक्ट, तो करेक्ट, रजिस्ट्रेशन बढ़ाएगा। सेकेंड हो गया आपका इमीडिएटली टाइटल आता है कि वो टाइटल बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए कि ये लैंडिंग पेज का पर्पस क्या है, जो हम लोग पर्पस बात कर रहे थे। तो वो करेक्ट, आपका प्रोडक्ट जो भी है वो आपका प्रोडक्ट हो गया। अगर वेबिनार कर रहे हो तो प्रोडक्ट हो गया कि मान लेते आप मनी मैनेजमेंट या माइंडसेट सिखा रहे हो, मनी माइंडसेट सिखा रहे हो, तो एग्जैक्टली उसमें क्या सिखा रहे हो उस वेबिनार में, वो आउटकम आपको क्लियर क्लियर लिखा रहना चाहिए फर्स्ट लाइन में ही बड़े बड़े फॉन्ट्स में, ताकि उसको एब्सोल्युटली, पूरा स्क्रॉल करना ही नहीं पड़े, उसको शुरू में ही दिख जाए, चाहे मोबाइल से आ रहा है चाहे डेस्कटॉप से आ रहा है। फिर उसके बाद उसी का थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं, सब हेडिंग डाल सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया एक वीडियो। वीडियो नहीं हो तो इमेज होना चाहिए, बट वीडियो रहा तो बेस्ट है। वीडियो में जहां पे आप
1 से 1.5 मिनट के अंदर ही अंदर आप उसको पूरा एक वापस से रिकैप दे सको कि ये पूरा पेज किस पर्पस के लिए है, वर्कशॉप में क्या होने वाला है, आगे जाके क्या होगा, क्या एक्सपेक्ट करोगे, किन के लिए है, पूरा का पूरा। अगर वो वीडियो भी देख ले तो वीडियो ऐसा होना चाहिए कि वो पूरा उसको लैंडिंग पे स्क्रॉल करने की जरूरत भी ना पड़े, वीडियो में ही पूरा A to Z एब्सोल्युटली आइडिया पता चल जाए। और फिर एक फाइनली एक आता है बटन नीचे। ये अभी हम बात कर रहे हैं खाली फर्स्ट स्क्रॉल का, अगर चाहे मोबाइल से ओपन कर रहा है चाहे डेस्कटॉप से, खाली फर्स्ट स्क्रॉल में उसको ये सारा चीज दिखना चाहिए। और एक रजिस्ट्रेशन बटन जहाँ पे क्लिक करके वो आगे बढ़ सकता है। तो करेक्ट ये इतना सारा चीज फर्स्ट फोल्ड में ही, जिसको हम लोग फोल्ड बोलते हैं कि एक बार में एक एक पार्ट आया स्क्रीन का, फिर स्क्रॉल किया फिर दूसरा पार्ट आया। तो ये सारा चीज कोशिश करना चाहिए कि फर्स्ट फोल्ड के अंदर ही आ जाए, यूजर्स को करेक्ट स्क्रॉल करने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि हम लोग वो जो फ्रिक्शन का बात कर रहे थे, हम लोग को फ्रिक्शन मिनिमाइज करना है। ऐड पे क्लिक करेक्ट किया, लैंडिंग पेज पे आ गया, तब हम लोग चाह रहे हैं कि उसको जितना ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन क्लियर वे में, कॉन्साइज वे में, सिंपल वे में वहां पे उसको दिख जाए और वो डिसाइड करके आगे बढ़ जाए, वहां आगे कन्वर्ट हो जा रहा है। बट अब मान लेते हैं उसको और इंफॉर्मेशन चाहिए कुछ भी, तो नीचे हम लोग 7-8 सेक्शन और भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि सेकंड सेक्शन में हम लोग डाल सकते हैं वर्कशॉप का कंटेंट। फ्री हम्म वेबिनार है तो वेबिनार का कंटेंट, कि हम लोग इस वर्कशॉप में, फ्री कोर्स में, वेबिनार में क्या कवर करने वाले, डे वाइज, डे 1, डे 2, डे 3, थोड़ा थोड़ा एक ओवरव्यू डाल सकते हैं, ये अपना सिलेबस टाइप का हो गया। फिर टेस्टिमोनियल्स डाल सकते हैं बीच में। टेस्टिमोनियल्स का कोई परफेक्ट जगह नहीं होता है, तो आप कहीं पे भी डाल दो, ऊपर डाल दो, करेक्ट नीचे डाल दो, और नीचे डाल दो, मिक्स करके डाल दो। बट एक क्रेडिबिलिटी आपको बीच बीच में बनाते रहना चाहिए। करेक्ट फिर नीचे हम जा रहे हैं, वेबसाइट को स्क्रॉल कर रहे हैं, और हम लोग एक सैंपल लैंडिंग पेज का नीचे लिंक डाल देंगे, जो हम लैंडिंग पेज का बात कर रहे थे, ताकि आप लोग विजुअलाइज कर पाओ हम कहाँ से देख के बात कर रहे थे। हम्म वो मेरे म्यूजिक स्टूडेंट का वेबसाइट है, हम्म learn.abhijitmusic.com। हम्म ठीक है। और फिर ये वर्कशॉप का डेट्स, करेक्ट टाइमिंग्स, कब है करेक्ट वर्कशॉप, ये भी बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए, वरना ऐसा थोड़ी है एब्सोल्युटली कि अगर लाइव वर्कशॉप कर रहे हो तो बस रजिस्टर कर लो, टाइम बाद में हम बताएंगे, बहुत लोगों का वैसा होता है कि बाद में हाँ हाँ बताएंगे। नहीं बट नहीं वो हम हाँ लोग को अवॉइड करना चाहिए कि बाद में क्यों बताना, क्लैरिटी दो ना यूजर को, उसका मन करेगा तो रजिस्टर करे, नहीं करेगा तो नहीं करे। करेक्ट तो टाइमिंग्स वगैरह होना चाहिए। फिर अगर कुछ बोनस वगैरह दे रहे हो तो बोनस वगैरह डाल दीजिए कि वर्कशॉप, जस्ट फॉर अटेंडिंग दिस वर्कशॉप आई एम ऑल्सो गिविंग यू दिस, तो उससे भी करेक्ट रजिस्ट्रेशन बढ़ जाता है। करेक्ट फिर यहाँ पे वापस से टेस्टिमोनियल्स मैंने डाला है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ गया अबाउट द ट्रेनर, या फिर अबाउट द कंपनी, अगर कोई कंपनी करा रही है तो ये कंपनी कौन है। और वर्कशॉप जनरली कंपनी नहीं कराती है, वो तो उसमें तो ट्रेनर ही बोलता है ना। तो करेक्ट अबाउट द कंपनी और ट्रेनर दोनों डाल सकते हो, बट अबाउट द ट्रेनर तो होना ही होना चाहिए कि करेक्ट ट्रेनर का क्या क्रेडिबिलिटी है। एंड ये जो ट्रेनर का क्रेडिबिलिटी डालते हो ना, इसको आपको काफी कस्टमाइज करके डालना है। जैसे कि एक इंटरव्यू आप देते हो तो उसमें दो चीज होता है, एक तो आपका रेज्यूमे होता है, एक सीवी होता है। रेज्यूमे में आपको पूरा कुंडली रहता है कि आप कहाँ कहाँ कब कब क्या क्या काम किए हो। सीवी एकदम शॉर्ट फॉर्म हो गया, उस कंपनी में जहाँ पे इंटरव्यू देने वाले हो उसके लिए टेलर्ड रहता है। तो जो करेक्ट अबाउट अस आप लिखोगे जब भी, तो आपको कोशिश करने की आप एकदम शॉर्ट शॉर्ट अबाउट लिखे, मतलब एकदम टू द पॉइंट, जो इस ऑडियंस को इस प्रोडक्ट के लिए काम आना है। आप हो सकता है करेक्ट जैसे फॉर एग्जांपल ये सिंगर है, तो हो सकता है इनका हॉबी रहता होगा स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग भी होता होगा, बास्केटबॉल भी खेलना रहता होगा। तो उतना डिटेल्स में उसके बारे में बात नहीं करना है, मन किया तो एक लाइन लिख दो कि आई ऑल्सो हैव दिस हॉबी। बट मैक्सिमम चीज आपको एक्सपीरियंस जो भी डाल रहे हो, आपको अपना सिंगिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस डालना चाहिए कि मैं यहाँ पे करेक्ट उनको सिखाता था, मैं 5 साल से ये कर रहा था, मैं इंडियन आइडल में था, ये जो भी आपका सिंगिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, जो आपके यूजर्स को, जो आपका वेबसाइट लैंडिंग पेज को स्क्रॉल कर रहा है, उसको और ये दे, ट्रस्ट दे कि हाँ आपसे क्यों सीखना चाहिए। वो आप अपने आप को बेच रहे हो वहां पे। करेक्ट ठीक है। आप अपने आप को दिखाओगे कि हम क्यों बेस्ट है, तब जाके लोग बाकी चीज पे देखेंगे। एब्सोल्युटली फिर यहाँ नीचे मोर टेस्टिमोनियल्स डाले हुए, कहीं कहीं वीडियो डाल दिए। मतलब टेस्टिमोनियल जितना ज्यादा हो जाए उतना अच्छा है। ऑफ कोर्स जब स्टार्ट कर रहे हो सकता है आपके पास नहीं भी हो, तो इट्स नॉट अ कंपल्सन कि आपको डालना ही डालना है। बट ये बहुत टाइम से कर रहे हैं तो इनका बहुत सारा टेस्टिमोनियल्स है, तो कोई हम लोग व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट डाल दे रहे, कहीं वीडियोस डाल दे रहे, कहीं कुछ डाल दे रहे। और नीचे टेस्टिमोनियल डाले, और फिर लास्ट सेक्शन जो होता है, एक फाइनल रिकैप। वो एक बस पूरा वेबसाइट, बहुत लंबा चौड़ा वेबसाइट लैंडिंग पेज देख लिया, तो नीचे जाके फाइनली उसको रिकैप देना है। ठीक है, काइंड ऑफ आर यू रेडी, व्हाट आर यू हम्म वेटिंग फॉर, ज्वाइन नाउ टाइप से, कि चलो अब किस बात का वेट कर रहे हो। तो एक ये बेसिक सा पैटर्न हो गया। और इसको ऑफ कोर्स आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके ट्विक एंड टेस्ट कर सकते हो, ऐसा कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं, यही होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड पैटर्न है जो मैं फॉलो करता हूँ।
कुछ लोग कुछ और फॉलो करते, कुछ लोग कुछ और फॉलो करते, आप अपने हिसाब से टेस्ट ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हो। तो ये हाँ, मेरे लेकिन आपने हिसाब से था जितने भी मनीष जी। कंपोनेंट्स बताया एकदम परफेक्ट बताया, और एक्चुअली इट्स अ वेरी वेल डिजाइन लैंडिंग पेज। मतलब मैं बिना अभिजीत का लैंडिंग पेज देख के भी अपना खुद लिटरली पूरा का पूरा विजुअलाइज कर पा रहा था, क्योंकि मैंने भी लैंडिंग पेजेस बनवाए हैं। एंड दिस इज अ गुड आइडिया, हम डिस्क्रिप्शन में मल्टीपल लैंडिंग पेजेस के यस। हम लिंक्स दे देंगे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लैंडिंग पेजेस को देख के समझ सके कि कौन से कंपोनेंट्स हैं। आप दूसरे लैंडिंग पेजेस को देख के समझ सके कि आप कौन सी चीज को अपने लैंडिंग पेज में यस। इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं या कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड आइडिया, विल डू दैट। और आप क्योंकि जब बता रहे थे, मुझे आपको इंटरप्ट नहीं करना था। ये जो हम्म। बता रहे थे एटीएफ अबाउ द फोल्ड, जो हम्म। पंकज बता रहे थे, जो पहला चीज होता है आपको स्क्रॉल करने के पहले ही जो इन्फॉर्मेशन नजर आ जाए, वो हम्म। उसको कहते हैं अबाउ द फोल्ड। और उसके नीचे जो भी है वो बिलो द फोल्ड है। पंकज, क्या आपको पता है ये जो एटीएफ और बीटीएफ है, जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, इंटरनेट पे जो भी एग्जिस्ट करता है हम्म। सब फिजिकल वर्ल्ड से आया हुआ है। तो अबव द फोल्ड मतलब क्या हो गया कि दुकान के बाहर जो दिख रहा है, पहला वही स्क्रीन मैं दिख रहा आपको, दैट इज एग्जैक्टली व्हाई दिस इज अ स्मॉल ट्रिविया अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज अबाउट द फोल्ड एंड बिलो द है। फोल्ड एंड वेयर हाँ। डज दिस नोमेनक्लेचर कम फ्रॉम। ओके। ठीक है। प्रिंट वर्ल्ड में, जब इंटरनेट के पहले, जब प्रिंट ओ। एडवर्टाइजिंग वाज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज टू कनेक्ट टू द ऑडियंस, हाँ हाँ हाँ। प्रिंट में सबसे इंपॉर्टेंट एड होती थी न्यूज़पेपर एड। ओके। न्यूज़पेपर एड में सबसे इंपॉर्टेंट एड होती थी फ्रंट पेज एड। हम्म। फ्रंट पेज एड में भी दो तरह की एड होती थी, एक होती थी अबाउ द फोल्ड, दूसरी होती थी बिलो द फोल्ड। सो जब आप न्यूज़पेपर खरीदते थे, सपोज ये आज सुबह का न्यूज़पेपर है, हम्म। आपने अभी तक इसको खोला भी नहीं, आपका न्यूज़पेपर टू फोल्ड्स में आता था, राइट? चार चार पांच फोल्ड में आता है शायद। मेन न्यूज़पेपर जो होता था वो मुझे ऐसे होता याद ना, नहीं है। ऐसे बहुत दिन ऐसे हो गया। खुलता है और फिर वहां से आप खोलते हो, राइट? यस, ये सो करेक्ट दिस इज, करेक्ट, हाँ। हाँ, सो दिस इज द मेन फ्रंट पेज ऑफ योर न्यूज़पेपर जो आप देख रहे हो। हम्म। अगर सपोज यहाँ पे आपके न्यूज़पेपर का नाम लिखा हुआ है, और इस सेक्शन में जो भी एड होती थी वो अबाउ द फोल्ड एड होती थी, एंड दिस यूज्ड टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव एड इन द हम्म। न्यूज़पेपर। लिटरली, अगर ये एड सपोज 10,000 रुपए की है, तो हम्म। बिलो द फोल्ड एड ऑन द सेम पेज कुड बी एज लिटिल एज 20,000 रुपीज, सॉरी, फाइव तो थाउजेंड रुपीज हाँ। 10,000 टू 5,000 रुपीज। अंदर के पेजेस में जो ऐड होगी वो 4,000, 3,000, 2,000, 1,000 ऐसे ऐसे कम होती जाती है। यस। बट इमेजिन करो, दिस इज फॉर 10,000 एंड दिस इज फॉर 5,000, सेम पेज, अबाउ द फोल्ड, बिलो द फोल्ड। क्योंकि वो इसका हाँ, बताइए। इसका भी एक साइकोलॉजिकल रीजन होता था कि ऐसा क्यों होता था। कितनी बार लोग, हो सकता है पूरा दिन का न्यूज़पेपर भी ना पढ़े, हम्म। लेकिन if you are not, even if you're not a consumer of the newspaper, you're walking to the station, you're passing through the newspaper stall, आप हम्म। तभी भी ऐड देख रहे हो। दिख ही रहा आप, है। हाँ, आप न्यूज़पेपर खोल नहीं रहे हो तो भी आपको ऐड दिख रहा है। एब्सोल्युटली। So what used to happen is 80% of people would end up seeing your ad if it was an above the fold ad. यस। And human psychology इतनी स्ट्रॉन्ग है और ये पैटर्न इतना इजी टू रेप्लिकेट है, इफ यू आर अबाउ द फोल्ड ऑफ योर लैंडिंग पेज इज डिजाइंड वेल, 80% ऑफ योर रजिस्ट्रेशन विल कम फ्रॉम अबाउ द फोल्ड। यस। तो आप इमेजिन कीजिए, अबाउ द फोल्ड आपको बनाने के लिए सपोज कितना, सिर्फ कॉपी राइटिंग करनी है, सिर्फ कॉपी राइटिंग। बिलो द फोल्ड के लिए आपको अबाउट द ट्रेनर, टेस्टिमोनियल्स, व्हाट विल यू लर्न, उसमें और कितना मेहनत करना है। आप इमेजिन करो, 80% रजिस्ट्रेशन आपकी अबाउ द फोल्ड से आ रही है एंड 20% रजिस्ट्रेशन आपकी बिलो द फोल्ड से आ रही है। तो इवन इफ यू आर अ न्यू कोच, इवन इफ यू आर अ न्यू पार्टिसिपेंट, प्लीज क्रिएट अ वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउ द फोल्ड and you will still create a successful landing page and you will still get amazing results out of your landing pages. यस। So इनफैक्ट मनीष जी, तो बहुत लोगों का तो ऐसा भी होता है कि उनका लैंडिंग पेज ही अबव द फोल्ड ही होता है, बस खत्म। हाँ, करेक्ट, हाँ, कितनी बार ऐसा होता है। वो भी एंड काफी अच्छा परफॉर्म करता है, इनफैक्ट कभी ऑफ कभी तो कोर्स, ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। यस, सो दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ, मुझे लगा ये ट्रिविया मुझे याद आया तो मुझे शेयर करना चाहिए आपके नहीं, साथ और बहुत हमारी जरूरी ऑडियंस है। के साथ। हाँ, अच्छा ये लगा। एटीएफ एंड बीटीएफ लोगों को लगता है हल्के में लेते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नहीं, मार्केटिंग का। ये सब तो अब डेफिनेटली जब भी आपके मन में आएगा कुछ कि एग्जैक्ट डेफिनेशन ये कहाँ से आया,
तो हाँ बहुत बार मुझे भी नहीं पता होता कहाँ से आया है, बस ठीक है चल रहा हाँ है तो चलाओ। मुझे तो नहीं बस मैं अपना थोड़ा लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज करने से मतलब रहता है कि चलो और अच्छा कर लो। हाँ नहीं मैं थोड़ा गीकी हूँ तो मैं सारी चीजों के बारे में पढ़ता रहता हूँ एंड नहीं। अगेन इट विल ऑल बॉयल डाउन टू साइकोलॉजी। तो हम्म क्यों मैंने ये पहली बार जब सुना था कि एटीएफ से 80% रजिस्ट्रेशन आती है, मतलब हम्म क्यों आती है, ऐसा क्या एटीएफ में, तब जाके मैंने एटीएफ के ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया, तब जाके मुझे ये समझ में आया, देन इट मेक सेंस टू मी कि हाँ यस इसलिए एटीएफ पे ज्यादा मेहनत की जाती है। यस एब्सोल्युटली। ठीक है। So beyond your landing page, then we go to the next aspect of your website, which is a thank you page. यस सो थैंक यू पेज बेसिकली वही हो गया जो हम लोग बात कर रहे थे कि लैंडिंग पेज का एक पर्पस होता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं अगर फ्री वेबिनार रजिस्ट्रेशन कराना है या कोर्स देना है, तो वो क्लिक करके वो बोला कि ठीक है मुझे इसमें इंटरेस्ट है, आई वांट टू इनरोल इन दिस, साइन अप। क्लिक करके अब वो दूसरे लैंडिंग पेज पे जाएगा वापस से, Mm-hmm. जो सिंपल सा लैंडिंग पेज होगा जहाँ पे नाम ही उसका थैंक यू पेज, इसलिए क्योंकि हम लोग उसको थैंक यू कर रहे हैं। थैंक्स फॉर शोइंग इंटरेस्ट, थैंक्स फॉर इनरोलिंग इन दिस कोर्स, थैंक्स फॉर साइनिंग अप फॉर माय वेबिनार। एक थैंक यू मैसेज दे रहे हैं। अब उस मैसेज में आप अपना थीम तो ऑफ कोर्स सेम मेंटेन करना है जो लैंडिंग पेज है, और इनफैक्ट लैंडिंग पेज में भी आपको ब्रांड सेम मेंटेन करना है। वो बाय डिफॉल्ट हम सोचे कि आप लोग समझ गए होंगे कि हाँ ब्रांडिंग और फॉन्ट हर जगह आपको थीम हो चाहे ऐड हो तो कंसिस्टेंट मेंटेन करना है। तो लगना नहीं चाहिए कि ये थैंक यू पेज कहीं और किसी और वेबसाइट में आ गया, एफिलिएट मार्केटिंग वाला कुछ एमएलएम टाइप का कुछ अलग नहीं लगना चाहिए। सेम लगना चाहिए कि हाँ प्रॉपर चल रहा है फ्लो में, चाहे कोई भी इंडस्ट्री का हो। ठीक है, तो हम्म थैंक यू पेज का पर्पस वही होता है लोगों को थैंक यू बोलना और उसको जो चाहिए होता है वो देना। जैसे कि अगर वेबिनार रजिस्ट्रेशन उसमें थैंक यू मैसेज दे दिए, आप अपने एक वीडियो भी डाल सकते हो वहां पे जहाँ पे आप और उसको बोल रहे हो, वापस से उसका बिलीफ स्ट्रॉन्ग कर रहे हो कि थैंक्स फॉर साइन अप फॉर दिस वेबिनार, और उसके कुछ रीजंस बता दे रहे हो कि आई नो यू हैव साइंड अप, बट here's why you should attend, here's why you should not miss attending the webinar course है, तो here's why you should definitely watch this course। बहुत लोग होते हैं फ्री में करेक्ट कोर्स लेते हैं, रख देते हैं। तो ये सब आप करोगे छोटा छोटा ट्रिक्स, तो उससे क्या होगा कि ज्यादा आपका वो जो आप लोगों को सर्व करना चाह रहे हो, जो भी आपका पर्पस है उसका, तो वो पर्पस ज्यादा सॉल्व होगा। तो वो करेक्ट है। और नीचे अपना एक हर जगह एक फुटर भी डालना होता है, वो मैंने वो बताना हम भूल गए। अगर आप एड चला रहे होते हो तो एक छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइवेसी पॉलिसी का भी आजकल पेज बना के डाल दोगे तो थोड़ा फेसबुक और गूगल के मामले में थोड़ा सेफ हो जाता है। करेक्ट पहले होता था कि इग्नोर कर देते थे, बट अगर वो सब प्राइवेसी पॉलिसी डालोगे नहीं तो कभी कभी आपका पेज रिजेक्ट भी होता है। बस एकदम सिंपल सा नीचे जाके फुटर में और कॉपीराइट मैसेज की आपका वेबसाइट का नाम है कॉपीराइट वगैरह, तो ये सब भी डालना है। तो थैंक यू पेज का आई होप मैंने बता दिया, कुछ मैं मिस कर रहा हूँ तो मनीषा आप भी ऐड कर सकते हो थैंक यू पेज के लिए। मैं एक बहुत प्रैक्टिकल रीजन बताऊंगा थैंक हम्म यू पेज का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जी। अ वेल डिजाइन थैंक यू पेज इज इनकम्प्लीट विदाउट अ पिक्सल इंटीग्रेशन। हम्म मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक थैंक यू पेज की ये होती है। सो बेसिकली क्या होता है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, लेट्स से हम्म 100 people end up coming to your landing page. यस Out of 100, 80 people end up signing up for whatever product you're selling them. They either buy the product or the program or sign up for the webinar or sign up for the हम्म newsletters. Okay, which means that 20 people are filtering themselves out. Despite coming to your landing page, they are not interested in your program, they are not interested in your brand, they are not interested in your product. So now tell me, would you rather want to focus on those 20 people and try to convert them, or would you rather focus on finding more people like the 80 people who actually signed up for your, let's say, webinar? यस दोनों में से the easier thing to do is to find more people who are alike those 80 people. So what happens is Facebook and Google, any ad platform has यस this code. In Facebook, it's called a Facebook pixel. In Google, it's called a tag. So what happens is you can add a pixel on your landing page and you can add a pixel with a different event on your thank you page. Okay, so let's say the pixel on your landing page is a traffic pixel, the pixel on your thank you page is a lead pixel. हम्म तो उससे क्या होगा, आपके फेसबुक एड को पता चलता है कि 100 लोगों ने एड देखा, 80 people ended up coming to the landing page, 60 people ended up signing up. हम्म But these 60 people are the most important people for Manisha's brand. हम्म So henceforth, Facebook will show your ad to more people who are alike these 60 people.
Yes. And the 40 people who dropped out, 40 people who did not sign up, Facebook will try to avoid audience like that until this 60 people ka audience is filled up. So a good thank you page with a proper lead pixel on the code will help you get better ad quality, better audience, lower CPL, lower CPC, which over a period of time will make your performance marketing a lot better. If I've said something wrong, Pankaj, please correct me. नहीं, बिल्कुल सही बताया आप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रहना ही चाहिए पिक्सल। एंड एक तो होता है कि मैं फेसबुक पिक्सल को इस तरह से लोगों को बताता हूँ कि पिक्सल क्या है। पिक्सल एक इंसान है जो फेसबुक और आपके वेबसाइट के बीच में कम्युनिकेट कर रहा है। फेसबुक, वेबसाइट और विजिटर, ये तीनों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। कौन Correct. विजिट कर रहा है, नहीं कर रहा है। और जैसे कि आप ऑलरेडी एक्सप्लेन किए कि जो हम लोग का मेन एक्शन है, हम लोग को लीड्स जनरेट करना होता है। तो अल्टीमेट गोल वो है, हम लोग को थैंक दो लैंडिंग पेज, एक सिंपल साइन अप पेज है, और सेकंड वाला जो हाँ क्लिक करके वो रजिस्टर करने के बाद पहुंच रहा है थैंक यू पेज, साइन अप पेज और थैंक यू पेज। तो हम लोग का गोल वो नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा लोग साइन अप पेज पे पहुंचे, हमारा Correct. गोल है ज्यादा से ज्यादा थैंक यू पेज पे पहुंचे। तो वो जो Absolutely. पिक्सल बेसिकली होता है, पिक्सल एक कोड होता है, 2-3 लाइन का कोड होता है जो फेसबुक हम लोग को देता है। वो आप खुद ही आप अपने डेवलपर से उसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, थैंक यू पेज पे डाल सकते हो जब आप वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो। तो Hmm. फेसबुक उसे डिफरेंशिएट कर लेता है, क्योंकि लोग पूछते हैं फेसबुक को कैसे पता चलता है, क्योंकि वो कोड हम लोग सिर्फ थैंक यू पेज पे डाल रहे हैं और वहां पे एक Correct. इवेंट ट्रिगर कर रहे हैं कि अगर इस पेज पे आता है तो ये मेरे लिए लीड है या ये मेरे Correct. लिए परचेज हुआ है। तो वो Hmm. ऑटोमेटिकली ये पिक्सल जो है फेसबुक को जाकर बताता है कि देखो ये आया था इंसान और ये मेरा परचेज किया, ये लीड बना है। तो फेसबुक और इस तरह का लोगो मुझे लाके दो, फेसबुक ऑप्टिमाइज करते रहता है। तो ये हो गया Correct. पिक्सल। और सेम आप बताए कि सब प्लेटफॉर्म्स अपना देता है। अब हाँ. इसके अलावा मैनेज हम लोग का जो सेकंड चीज होता है वो गूगल एनालिटिक्स होता है। Hmm. वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, और गूगल एनालिटिक्स हम लोग Absolutely. हर पेज पे डाल सकते हैं। Absolutely. पहला पेज पे, दूसरा पेज पे, इनफैक्ट पिक्सल भी डाल सकते हैं हर पेज पे। हाँ हाँ. बस उसका इवेंट अलग अलग हो गया कि थैंक यू पेज पे जा रहा तो कुछ और बोल के उसको डालते, लीड पे, लीड इवेंट वगैरह। Correct. तो गूगल एनालिटिक्स डालने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, वो भी एक कोड हो गया बेसिकली, ट्रैकिंग के लिए काम आता है। उसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि हम लोग अपने ऑडियंस को एनालाइज कर सकते हैं लिटरली, कि वो Hmm. किस एज ग्रुप का है, किस सिटी से आया है, क्या उसका इंटरेस्ट है, कौन से मोबाइल से आ रहा है। बहुत सारी चीज आप पता कर सकते हैं, मतलब आप डिटेक्टिव बन के पूरा पता कर सकते हैं कि ये क्रोम चला रहा है, पंकज इतने दिन से एंड्रॉइड से चला, मतलब जो भी विंडोज चला रहा था आज मैकबुक से आपका वेबसाइट विजिट किया है, उनका बहुत बहुत सारे डिटेल्स देख सकते हो। और उसके बेसिस पे डिटेल्स देखना क्यों, आप सोचोगे, डिटेल्स के बेसिस पे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अगर आपको पता रहेगा Correct. कि मैक्सिमम लोग जैसे कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, हम लोग मोबाइल जो भी वेबसाइट या लैंडिंग पेज बनाते हैं तो मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं कि Correct. मोबाइल में तो सबसे अच्छा दिखना चाहिए, डेस्कटॉप में जैसा भी दिखे, ये मेरा फिलोसफी है कि मोबाइल में तो हाँ. अच्छा दिखना ही चाहिए। अब क्यों ऐसा होता है, क्योंकि डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग को दिखता है कि लगभग 90-95% लोग मोबाइल से आ रहे हैं, बहुत Correct. कम यूजर्स है जो डेस्कटॉप से आ रहे हैं। तो हम लोग Correct. प्रायोरिटी उन्हीं को देते हैं कि 95-96% के लिए, ऑफकोर्स दोनों के लिए अच्छा होना चाहिए, बट मोबाइल के लिए तो बेस्ट होना चाहिए, स्पीड भी बेस्ट होना चाहिए, कलर्स बेस्ट होना चाहिए, जो अबव द फोल्ड वाला कॉन्सेप्ट है वो बेस्ट होना चाहिए। तो ये सब हम लोग को पता कैसे चला कि 95% आ रहे हैं, तो वो गूगल एनालिटिक्स के कारण हम लोग को पता चला कि ये लोग 95% मोबाइल यूजर्स है। हो सकता है आपको पता चलने लगे कि 95% या फिर 70%, 30% कुछ भी, कि इतना सबसे ज्यादा सेल आपका बॉम्बे से हो रहा है, चेन्नई से हो रहा है, ये दो जगह से। तो आप अगले बार कोशिश करोगे, फेसबुक को बोलोगे कि, या फिर कहीं भी आप जो मार्केटिंग एफर्ट्स कर रहे हो, आप उन दो सिटीज के अराउंड करोगे, आप पता करोगे कि इन दो सिटीज में ऐसा क्या कॉमन है जो यहाँ पे सेल हो रहा है। अच्छा, Correct. ये एज ग्रुप मेरा ज्यादा बाय कर रहा है, वो एज ग्रुप बाय नहीं करता है। तो अगली बार आप ज्यादा बजट उसी एज ग्रुप पे स्पेंड करोगे। तो गूगल एनालिटिक्स भी आपको स्टार्टिंग से ही स्टोर करके मतलब कोड डाल के रख लेना चाहिए। So क्या बोलते हो आप? basically, हाँ हाँ ये you, आपके साथ इस बारे में बात करने का या क्वेश्चन करने का सेंस ही नहीं बनता, ये आपकी रोजी यस। रोटी है, आपको इसके बारे में बहुत यस। अच्छे से पता है. And I यस। am so happy that we are doing this episode today because this is literally why Coach I Need Help was created. I really hope everybody who is watching till this moment, you have made a lot of notes, you've understood the importance of so many small things. Believe me, ये चीज समझने के लिए मुझे महीनों की मेहनत लगी है. मैंने बहुत सारा ट्रैफिक लूज किया है, डेटा लूज किया है, मैंने बहुत सारा एनालिटिक्स मैं अच्छे से जो कर पाता था वो मैंने नहीं किया है. और ये सारी छोटी छोटी चीजें जो ओवरऑल बढ़कर एक बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकती है, ये आज आपको इस एक एपिसोड से मिल रहा है. और ये हमने एब्सोल्युटली। हर चीज के साथ किया है.
We've done this with your webinar script, with your webinar setup formula, with your business setup formula. आप हमारे सारे episodes देखिए, subscribe to our channel. Please keep asking us questions. That is one request that we have. Go to comments and ask us anything. We are absolutely transparent. We are literally giving you what is the benchmark ratio, कितना percentage Yes. आपका drop off होना चाहिए. जो ये literally whatever information Pankaj has given you today, you could have paid him a good amount for his consulting and then you would have gotten this information. But Yes. when we started Coach I Need Help, we had clearly decided on this window, we do not have any ulterior motive. We are going to be as transparent as possible. We are going to give away all our numbers. We are going to give away all our knowledge. We'll not hide anything. And Yes. that is exactly why we are doing this deep dive episodes and we are giving you all the information we have. Yes. So Pankaj, I think we've already almost covered everything. We covered what is the difference between a landing page and a website. We've covered analytics. We've covered Google Analytics and Facebook Pixel. We've covered the structure of the website, the branding aspect, which was professional emails. I think the last thing that we've left is two things. Once a lead has signed up on your landing page, you have to tag them and you have to follow up with them. You have to build a relationship with them. And two of the most important platforms to do that. See, what happens is when you go to let's say you come to my landing page on Paycheck to Profit. You give me your first name, you give me your email address, you give me your phone number. Yes. After that, the moment you've given me these three pieces of information, now my responsibility actually starts. My responsibility is to build a relationship with you. Okay. Yes. And I will do that using two important components, which are the real ways to build a brand, build your audience, build a loyal audience, which is one is through email and one is through WhatsApp. Okay. Absolutely. Now Pankaj will tell us about the importance of following up with your leads on email. And after that, Pankaj, could you please tell us about the whole concept of following up with your leads on WhatsApp? Yes, इन दोनों के absolutely. आप अगर हमें हाँ पूरा यूनिवर्स बता देंगे तो लिटरली राइट फ्रॉम डिजाइनिंग अ वेबसाइट टू फॉलोइंग अप विद पीपल, ये हमने पूरी जर्नी कवर कर ली. यस मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगा. इसमें मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में ज्यादा बात करो क्योंकि आप अपने आप को बोलते रहते हो बैकएंड एक्सपर्ट है तो ये वाला इन्फॉर्मेशन मैं आपसे लूंगा. बट स्टार्टिंग के लिए मैं आप बता देता हूँ लोगों को फ्लो मेंटेन करने के लिए. हाँ. बेसिकली क्या हो रहा है कि फेसबुक ऐड क्लिक किया, लोग डिजाइन किया फेसबुक ऐड, वहां क्लिक करके लैंडिंग पेज पे आया, नाम ईमेल फोन नंबर दिया, आगे जाके साइन अप किया और फिर थैंक यू पेज पे पहुंचा. वहां पे ट्रैकिंग वगैरह भी हो रहा है. तो ये सब सारा सिस्टम हो रहा है. बट मान लेते आप यही सेम चीज किया, आप किसी फ्री वेबिनार के लिए साइन अप किए हो. मान लेते पेचेक टू प्रॉफिट का ही बात कर लेते हैं हम लोग. उसके लिए कोई वेबिनार के लिए साइन अप किया है, साइन अप किया है, बस बात खत्म हो गया वहां पे. अब कैसा लगेगा? मतलब लगेगा ना कि अब साइन अप हो गया तो और क्या. आदमी को चाहिए ना कि कुछ एक ईमेल आए प्रॉपर जहां पे और डिटेल्स हो उसके बारे में, फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आएगा, नेक्स्ट स्टेप्स दिखना चाहिए. थैंक यू पेज पे भी तो हम लोग डाल ही रहे हैं नेक्स्ट स्टेप्स, बट एक प्रॉपर ईमेल भी चाहिए होता है. आप कहीं पे भी साइन अप कर रहे हो, टिकट बुक कर रहे हो, बुक माई शो से बुक कर रहे हो मूवी टिकट, चाहे आईआरसीटीसी से रेलवे टिकट बुक कर रहे हो, चाहे फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, ईमेल तो आपको आता ही आता है ना. मतलब इसको एक्सप्लेन कोई कैसे कर सकता है आज के जमाने में कि मतलब इसको एक्सप्लेन करने वाली चीज ही नहीं है कि ईमेल नहीं आए. तो कहीं पे भी कोई आपको रजिस्टर कर रहा है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसको एक ईमेल भेजो. उसमें सेम इंफॉर्मेशन भी भले रहेगा कि आपके बारे में जो लैंडिंग पेज पे था थोड़ा बहुत, बट एक रहना चाहिए कि वेलकम ईमेल. वरना इनकम्प्लीट लगता है कि आप कॉलेज में एडमिशन ले लियो, उनको पैसा दे दियो 4 लाख 5 लाख रुपया, अब आपके पास उनके तरफ से कुछ कंफर्मेशन है ही नहीं, बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, रिसिप्ट आपको मिल ही नहीं रहा है. तो ये ईमेल काइंड ऑफ रिसिप्ट हो गया आपका, जो वो स्टोर करके रख रहा है. फ्यूचर में जब वेबिनार ज्वाइन करना है तो वहां पे उसको डिटेल्स दिखेगा. ये तो सिर्फ हो गया वेलकम ईमेल का बात. अब इसी तरह से बहुत सारे ईमेल्स होता है. एक तो गया वेलकम ईमेल, अब फिर जाके उसके बाद 2-4 वेलकम ईमेल के बाद और भी आप अपने आप को बता सकते हो. मान लेते आज है, मान लेते फॉर एग्जांपल मंडे, सैटरडे को आपका वेबिनार है, मंडे को कोई रजिस्टर कर रहा है, तो अभी तो टाइम है ना 5-6 दिन वेबिनार होने में. तो उसके बीच में आप लोगों को एडुकेट कर सकते हो ना, अपने बारे में बता दो, अपने प्रोग्राम के बारे में बता दो, अलग ईमेल भेज के उनको और नर्चर करो. बेसिकली सबसे क्या होगा कि लोग आप पे ट्रस्ट और ज्यादा करेंगे. आप अपने बारे में बता रहे हो तो आपके मेथड पे ट्रस्ट करेंगे. तो बहुत लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट वेबिनार करते हैं. बट अगर वेबिनार से पहले आप ये सब स्टेप भी लगा दोगे
तो वो लोग थोड़ा सा ऑलरेडी ट्रस्ट करके आएंगे, आपको आने से पहले ही आपको जानेंगे कि कौन है, तो उससे अटेंडेंस भी बढ़ेगा इनडायरेक्टली, क्योंकि वो लोग आपको जान रहे कि अच्छा ये कोई एक नॉर्मल इंसान नहीं है, ये ऑलरेडी इस फील्ड में एक्सपर्ट है, करेक्ट। तभी वो बात कर रहा है। तो ये तो हो गया एक नर्चरिंग ईमेल स्टेप का एक पहला स्टेप हो गया। फिर उसके बाद रिमाइंडर ईमेल्स आप भेज सकते हो बहुत सारा, कि 48 आवर्स लेफ्ट, क्योंकि भूल जाते हैं लोग, क्योंकि फ्री वेबिनार है, पैसा देके भी लोग भूल जाते हैं। तो ये हम्म। तो फ्री वेबिनार अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो 2 आवर 2 डेज लेफ्ट, फिर 1 आवर लेफ्ट। जिस दिन वेबिनार है सैटरडे को मान लेते हैं शाम को 7 बजे, तो आप 7 बजे भी एक ईमेल डाल सकते हैं कि वी हैव, मतलब 6 बजे डाल दिए 1 आवर लेफ्ट, 7 बजे भी डाल दो एक कि वी हैव ऑलमोस्ट स्टार्टेड, दिस इज द फाइनल चांस। ईमेल करेक्ट। भेजने में आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं लग रहा है बार बार हर ईमेल के लिए, ईमेल बहुत सस्ता होता है, तो आप उसको मल्टीपल रिमाइंडर्स भेज सकते हो। और यूजर फ्रस्ट्रेट नहीं होगा कि आप इतने रिमाइंडर्स क्यों भेज रहे हो, क्योंकि वो सामने से हाथ खड़ा करके बोला है मुझे आपका वेबिनार में इंटरेस्ट है, आप मुझे फॉलो अप करो, तभी तो वो अपना करेक्ट। एड्रेस डाल के गया है ना, उसको इंटरेस्ट है। तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप उनको रिमाइंड करो कि आओ। वो भूल सकता है यूजर, बट आपको उसको बुलाना है। तो ये सब हो गया बेसिक वेबिनार सीक्वेंस। अब इसके बाद थैंक यू, वापस इधर थैंक यू ईमेल भी जाएगा उसके पास, कि जैसे ही साइन अप हो गया तो अब वेबिनार खत्म हो गया मान लेते हैं 7 से 9 बजे तक या 10 बजे तक का वेबिनार चला। 9 बजे आप वापस से उसको मैसेज भेज रहे हो, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द वेबिनार, हियर्स द समरी। और वापस से अपसेल का लिंक भेज सकते हो अगर आप वेबिनार के बारे अगर कुछ पिच कर रहे हो उसको, ऑफ कोर्स जो हम लोग चाह रहे हैं पिच करना। तो हम्म। क्योंकि अभी लास्ट एपिसोड में हम लोग डिस्कस किए थे कि मार्केट एजुकेशनल वेबिनार और मार्केटिंग वेबिनार में क्या अंतर वगैरह है, तो वहां पे आप करेक्ट। लोग जाके देख सकते हो इनकेस अगर ये सब नहीं दिखे हो तो। बट जनरली हम लोग मार्केटिंग वेबिनार का ही बात करते हैं, जहाँ पे वेबिनार में लोगों को बुला के एडुकेट करते हैं और फिर हम लोग कुछ उनको पिच करते हैं कि अगर आपको हमारे साथ आगे काम करना है तो ये रहा ऑप्शंस। तो वो ऑप्शन के बारे में आप मेल पे वापस से दे सकते हो। तो बहुत सारा हर स्टेज पे आप उसको मेल्स भेज सकते हो। करेक्ट। ये हो गया नॉर्मल मेल्स। अब मेल्स एक नर्चरिंग का कॉन्सेप्ट भी होता है, एक तो हो गया 7-8 दिन तक जब वेबिनार चल रहा था उस ड्यूरेशन पे आप मेल भेजे। अब उसके बाद नर्चरिंग का मेल होता है, वो मैं मनीष जी के लिए छोड़ता हूँ, वो मनीष जी बताएंगे, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे मेरे लिए खुद के लिए नर्चरिंग मेल सेटअप करना। तो मनीष जी आप याद रखिएगा। बट अब हाँ। इससे पहले जो हम लोग ये सारा 7-8 चीज किए, 7-8 तरह का मेल भेज रहे, सेम चीज को आप इंडिया में अगर हो तो आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो। करेक्ट। मतलब इंडिया के लोग व्हाट्सएप ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बाहर का मुझे अभी एक्सपीरियंस नहीं है। बाहर के लोग शायद फेसबुक मैसेंजर ज्यादा ये करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं अगर ऐड के थ्रू आ रहा है तो। हम्म। क्योंकि मैं क्लाइंट के लिए चला रहा था तो वो लोग बोले कि मैसेंजर के लिए ऐड चला दो, व्हाट्सएप पे हम्म। मत डालो। तो हम्म। इंडिया में अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, एक तो मेल से भेज दिए सारा चीज, सारा सेम टू सेम कम्युनिकेशन आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो। पहले करेक्ट। ये अलाउ नहीं होता था, व्हाट्सएप का एपीआई वगैरह नहीं आता था, आजकल वो सब बहुत ऑफिशियल हो गया है, वो बहुत इजी कर दिया है व्हाट्सएप हमारे लिए, कि अलग अलग पार्टनर्स भी आते हैं, वॉटी हो गए, एआई सेंसी हो गए, वो सब। तो बहुत सारे पार्टनर्स को यूज करके आप क्या कर सकते हो कि सेम चीज जैसे आप पहले टिकट का बात कर रहे थे, तो टिकट बुक करते थे खाली ईमेल आता था और आपके पास एसएमएस आता था। हम्म। आजकल ईमेल एसएमएस तो आता ही है, साथ ही साथ एक व्हाट्सएप का भी मैसेज आ जाता है आपको, तो कितना अच्छा करेक्ट। लगता होगा। मतलब अभी तो नॉर्मल हो गया हमारे लिए कि ये आता ही आता है, व्हाट्सएप भी अब नॉर्मल हो गया है। पहले करेक्ट। एसएमएस नॉर्मल हुआ, फिर ईमेल नॉर्मल हुआ, और फिर व्हाट्सएप भी पूरा का पूरा नॉर्मल हो गया। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आप खर्चा एक जगह कर रहे हो, ऐड पे खर्चा कर रहे हो, 10 रुपए 20 रुपए पर क्लिक ला रहे हो सकता है आपको 50 रुपए लगभग ऑन एन एवरेज पर लीड आपका पड़ रहा है। तो आप ऑलरेडी 50 रुपए खर्चा कर रहे हो पर लीड पे, तो आप उसको क्यों छोड़ना है, आपको अलग अलग पॉइंट से कम्युनिकेट करो ना। किसी को ईमेल करेक्ट। चेक करने का आदत है, किसी को व्हाट्सएप, तो आप हर जगह से उनको भेज दो मैसेज, उनको जहां से मन है वो देख लेंगे। तो ये करेक्ट। मनीष जी मेरे मेरी तरफ से थोड़ा सा था। आप मुझे ये इस पे आपको कुछ ऐड करना हो तो आप करिएगा। प्लस लोगों को नर्चरिंग के बारे में बताइए, जो बाद वाला कॉन्सेप्ट है कि जिंदगी भर जो नर्चरिंग करते हैं वो क्या होता है, मतलब क्यों करना होता है। ठीक है। So, Pankaj has, do you see why I tell you this guy is the expert? The way he has explained the entire email marketing and WhatsApp marketing to build trust, build credibility. Literally एक 5 मिनट में आपको मार्केटिंग एमबीए करवा दिया है पंकज ने, ये पर्टिकुलर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब नर्चरिंग जो है वो उसका एक नेक्स्ट लेवल है कि ठीक है, आई लुक एट नर्चरिंग एज अ सिंपल थिंग। Every person who you shake hands with does not end up becoming a best friend, but every person who you come in contact with, keep talking to on regular basis, keep building a relationship with, has the capability of either becoming your best friend or your best customer or your
most appreciated vendor, or so on and so forth. Basically, getting introduced to somebody is one thing. Putting in the effort and building a relationship is actually what changes the game entirely. So, let's say a person comes, checks your ad. Okay, I'm giving you a very real life example. Okay. You see my ad on Sunday for a webinar that is happening on Friday evening. Okay. You have full intention to attend the webinar on Friday. But on Thursday, you end up realizing that a big client of yours is trying to put a meeting exactly at the time of the webinar. Or some relative of yours is coming and meeting you, or a friend of yours needs your help, or you just have to go out on a date with your partner, or something else happens. Some other cousin of yours has booked a movie ticket, because of which you now can't attend my Friday webinar. Now, you are a fabulous lead. You are somebody who really needs my product. You are somebody who I would love to give value to, and your relationship with me can be extended for an entire lifetime. But if I, just because you signed up for my Friday webinar, which you could not attend, okay, and if I don't give you the kind of importance you need, if I don't tell you that, I am interested in this relationship, it's okay if you did not attend the Friday webinar. I'll do a webinar again in another 10 days. I'll do another webinar in another 20 days. I need to keep building on my relationship with you so that you can trust me. You can keep remembering me. You can keep remembering that, oh, you know what? This person, I had signed up for the webinar on Friday, but I could not attend it. But that did not stop him from building a better relationship with me. This did not stop him from giving me more value. Okay. The relationship was supposed to be for a webinar. But if I give you more emails, if I give you more information, you will only trust me, my brand, and my services, and my overall business better. Of course. My way of looking at business is revenue is incidental. Building value, building brand, building relationship is more important, according to me. Because when you do this, revenue will automatically find its way into your balance sheet. There are so many times when you may not necessarily be a customer of a particular brand, but you have good things to say about the brand. I can give you this as an example. 1% of the world will own a luxury car. But when I tell you the name luxury car, when I tell you what is the most expensive car that you know of, you have a brand in your name already. Okay. Where did that brand name come from? You are not a customer. You're probably never going to buy that car, although I hope you do. But yet you're thinking of that brand. You're thinking of that car. You're thinking of the color that you like. You're thinking about the interiors of the car. You know some features of the car that you've seen probably in a video. How has all this happened? That brand has nurtured you and created a mind space which makes you think of that brand the moment I tell you this. Similarly, even you have the potential to build such an image of your brand in the mind of your audience, in the mind of your customer, in the mind of your leads, and it is your responsibility to do that. Now, how do you do that? The moment somebody shows interest and wants to connect with you, stop focusing on trying to get revenue out of that person. Try to build a brand in the mind of that person. Because brand will, and coincidentally, the recommendation that I'm going to give you today is coming exactly from this mindset. I'll give you a story of where did this mindset come from today and why I chose the book that I have chosen. But that is what I want every business owner, every audience member of Coach I Need Help to do. Build a brand. When you build a brand, when you focus on building a brand, when you focus on giving value to your leads, to your audience, to your customer, business will automatically start expanding, not growing. I don't want people to grow their business. I want people to expand their business. I want people to multiply their businesses. So yeah, that's why tagging of your lead on your email system, sending them reminders on WhatsApp is important. According to me, nurturing that audience, nurturing that email list is more important. Yes. And here, I would like to share an insight.
नॉट श्योर हम्म। इफ मैं आपसे पूछ लेता हूँ, लाइक हम लोग बात करते रहते हैं डीडी के बारे में, शायद हम लोग पहले भी हाँ बताए। तो हाँ। कुछ हम लोग बताए उनको कि लोगों को कि उनका सारा का सारा सेल्स अभी जो आया है अल्फा क्लब के लिए, जो कम्युनिटी है, सारा का सारा सेल्स उनका सिर्फ ईमेल से आया, उनको अलग से ऐड भी नहीं चलाना पड़ा। और किस करेक्ट ईमेल से? जो वो 5 साल 6 साल 7 साल से बिल्ड कर रहे हैं, करेक्ट उनको नर्चर कर रहे हैं, जो मनीष जी बताए, करेक्ट। उनको वैल्यू दे रहे हैं। वो फ्री वेबिनार के लिए कभी अटेंड किया होगा, फ्री कोर्स लिया होगा उनका, 5 साल मतलब मैंने लिया था 2016 में। बट मैंने अभी जाके 2023 में या 22 एंड में अब जाके उनसे बाई किया था उनका प्रोग्राम। तो 5-7 साल बाद मैंने उनको जाके 2 लाख रुपए पे किया। तो अगर मैं नहीं करता हूँ, मतलब वो अगर मेरे को नहीं भेजते इतना सारा मेल्स कि अरे 5 साल में नहीं बाई किया तो आज क्या बाई करेगा, बंद करो, तो वो भी बहुत हिम्मत वाला काम होता है, लाइक लगातार भेजते रहना। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम रजिस्टर किए थे लैंडिंग पेज पे जाके, तो रैंडम इंसान तो नहीं थे ना कि कभी भी हमको मार्केटिंग का ऐड दिख रहा है बट मुझे मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ आता ही नहीं, मतलब मैं कुछ और ही फील्ड का हूँ, मुझे मार्केटिंग में हल्का सा भी इंटरेस्ट नहीं है। जैसे मान लेते हैं मुझे कुछ एक साइंस के बारे में कुछ ऐड आने लग गया कि हाउ टू फाइंड प्लैनेट्स, या फिर कुछ प्लैनेट वगैरह का ऐड आने लग गया, मुझे अभी उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है प्लैनेट्स वगैरह के बारे में कि ये प्लैनेट में कैसे रिसर्च करते हैं वो। तो वो ऐड दिखेगा भी तो मैं क्लिक नहीं करूंगा। मैं क्लिक वही करता हूँ जो मुझे इंटरेस्ट हो। कहीं ना कहीं कोई भी आप लोग भी ऐड क्लिक कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको उस टॉपिक पे तो इंटरेस्ट है ना, तभी आप उस चीज का वेबिनार या जो भी ऐड है क्लिक करके आगे बढ़ रहे हो। आगे बढ़ने के बाद आप अलग से नाम, ईमेल, फोन नंबर डाल रहे हो। तो इसका मतलब जो भी आपके पास लीड आ रहा है, लोगों को लगता है कि 100 लीड में से 30 ही लोग 40 लोग अटेंड कर रहे हैं तो बाकी सब वेस्ट लीड था। नहीं, वेस्ट लीड नहीं हो रहा है ना, वो उस समय नहीं अटेंड किया क्योंकि वो फ्री वेबिनार था। आपके साथ खुद भी होता होगा, आप फ्री वेबिनार रजिस्टर कर रहे हो, अटेंड नहीं कर रहे हो क्योंकि बिजी हो जाते हैं लोग टाइम में, पेड रहता है तब भी नहीं करते अटेंड, फ्री है तो क्या हो गया, काम आ गया तो काम आ गया ना। तो इसलिए मतलब लीड जो आपके पास आया 100 का 100 लीड, उसको वेस्ट नहीं होने देना है, उसको कहीं ना कहीं भेजते रहना है। इनफैक्ट मनीष जी, मैं आपको एग्जांपल शेयर करता हूँ अपने लिए भी। हाँ, तो अल्फा क्लब को जो हम बात कर रहे थे, उनका उनका 2 लाख रुपए का मेंबरशिप है। अभी तो वो शायद और बढ़ा रहे हैं उनको। जैन बता रहे थे कि उनको 4 लाख करने वाले हैं। तो उनके 2 लाख का जो मेंबरशिप है उसके लिए 100 पीपल को वो एक्सेप्ट करते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, उनका लिमिटेड स्लॉट्स रहता है। तो 2 करोड़ पर मंथ का रेवेन्यू हो रहा है कहाँ, सॉरी पर ईयर का, कहाँ से? उनके ईमेल। ईमेल लिस्ट से। इतना एब्सोल्युटली। इंपॉर्टेंट है वो। और वो लोग चाहते 2 करोड़ का रेवेन्यू बनाना, बट उनका ईमेल लिस्ट तो इतना बड़ा है कि वो 200 करोड़ का भी चाहे तो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इससे वैल्यू। आराम से आराम से। उनका स्ट्रेटेजी है उतना बनाना, बट वही है कि वैसा बन रहा है। तो सेकंड एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना पर्सनल ऐड करना चाहूंगा कि अ, मैं जो बता रहा था कि मनीष जी और बाकी सब मिलके डीडी की अभी हेल्प लगा था। तो मैं अपना भी फाइनली एक ईमेल नर्चरिंग सीक्वेंस सेटअप किया था, जो अभी न्यू ई बुक आया था जो हम लोग कुछ एपिसोड्स पहले बात कर रहे थे। तो उसका भी मैंने 40 ईमेल्स बनाया था ऑटोमेटिकली, और नॉट ऑटोमेटिकली, आई मीन उनको ऑटोमेशन पे सेटअप कर दिया था कि जैसे ही कोई ऑटोमेशन, मेरा ई हाँ। बुक डाउनलोड करता है उसको अगला 40 दिन तक एक 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 ईमेल जाते रहे। तो कल मैं लॉगिन करके सोच रहा था कि चलो, अरे ये तो बहुत दिन हो गया, सारा ईमेल्स खत्म हो गया होगा, देखते हैं। तो मैं देखा कि नहीं, अभी 30 ही दिन हुआ है, अभी भी उसके पास 10 दिन और है। और मैं पूरा बिजी करेक्ट। हो गया था 15-20 दिन, कुछ और चीज में बिजी था। बट कल जाके देखे तो देखिए, अरे 30 दिन से मैं अपना कन्वर्ट किट खोला नहीं हूँ, कुछ नहीं हुआ, बट लोग आ रहे, मेरा ई बुक डाउनलोड कर रहे, और अपने आप वो सब्सिक्वेंट ईमेल्स भी ओपन कर करके पढ़ रहे, रिप्लाई कर रहे, कमेंट्स कर रहे, मतलब ईमेल्स पे रिप्लाई का भी मैं बोलता हूँ लोगों को करने, लोग रिप्लाई कर रहे, कंज्यूम कर रहे, और हम कुछ इन्वॉल्व ही नहीं है बट अपने आप लोग नर्चर हो रहे हैं। तो अब सोचो ना, जो 30 दिन तक लगातार मेरा ईमेल खोल रहा है, 100 में से हो सकता है 20 ही लोग खोले हैं, 20% ओपन रेट आता है मान लेते हैं। तो 20 लोग भी जो खोल रहे हैं, 100 में से 20 खोल रहे हैं, अगर वो 1 लाख होता तो 20,000 लोग खोलते हैं। तो ये जो बीस करेक्ट। परसेंट लोग जो बन रहा है, कितना मुझे इंपॉर्टेंट समझ रहा हूँ मैं, कितना वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, काफी रेजोनेट कर रहे हैं। उनको मैं जाके कुछ इनवाइट करता हूँ बाद में कोई प्रोग्राम में, वेबिनार में, तो वो काफी हाईली नर्चर्ड लोग होंगे रादर देन इनवाइटिंग अ रैंडम पर्सन टू द वेबिनार। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। तो मतलब इसको हम लोग कभी बंद नहीं कर सकते, मतलब उसको, मतलब छोटा सा 5 मिनट 10 मिनट में हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और एक्सप्लेन कर भी देंगे इसको तो कर भी चुके हम लोग, बट वो जब तक आप खुद नहीं कर लोगे ना ये, तब आपको ये वाला फीलिंग का एहसास नहीं होगा जो मुझे लेट्स कल हुआ था। लेट्स जस्ट से the difference between a good coach, a good service provider, and an excellent service provider is हम्म, how they nurture their community.
Yes. एक इतना ही simple बात है. I'll tell you something very honestly because we are again talking about DD, which is like a guest appearance in all our episodes. Yeah. DD is not the most amazingly mind-blowing personality that I have met. No, I have met multiple marketeers who are much better than DD. I have met multiple people whose way of oration, whose way of explaining, whose way of communicating is much better than DD. I have not met anybody who's as genuine as DD As and consistent as TD. as consistent as DD, as genuine as DD, as I would not even say hardworking, but as smart working as DD, as futuristic as DD, as visionary as DD. So ये सारी चीजों का जो फर्क पड़ता है ना, understand this. It's how to explain this. One is a farmer who will put the seed, sow the seed, take care of the entire field, and harvest at the end of the season. And the other person is somebody who's working on a daily wage. They'll go out, they'll keep talking, they'll keep creating content, they'll keep, trying to build their brand, they'll keep pushing their content all the time. And with every piece of content, they'll get 2 people, 3 people, 2 people, 3 people. Versus somebody who keeps working consistently, at the end of the season will get 500 people together. And now imagine if you create a system where you don't overwork yourself, where you don't overburden yourself, but you implement multiple strategies wherein you're getting 2 people through your content, you're building your brand, you're nurturing them, you're farming, you are literally going to create one of the biggest funnels in your industry, in your category. But for that, you will have to put in the work. And that is literally the kind of community that Pankaj and I are creating with Coach I Need Help. Yes. For somebody who stayed till this moment in the episode, this literally shows us that you are serious. This literally shows us that you understand the importance of this knowledge, this information, and we would love to connect with you. We would love to know what kind of challenges that you're facing so that we can solve them in the future episodes. We can answer your questions in the future episodes. Literally just reach out to us. Like, I generally tend to say these statements only towards the end of the episode because I know very few people are going to reach till here. So if you've reached till this, trust me, you can just reach out to Pankaj and me on, let's say, Twitter, Instagram, DM, and just tell us, you know what, I saw this episode till the end. This is something that I really need help with, and we'll be very happy to reach out to you and connect with you. Absolutely. And यहाँ पे मेरे तरफ से भी एक जाएगा कमेंट्स के लिए कि मैं सोच रहा था मनीष जी कि लोग कमेंट्स क्यों नहीं करते हैं, तो क्या ऐसा भी होता है कि हम लोग मल्टीपल एग्जांपल्स ले लेके बताते हैं उसको, तो समझ में इतना आ जाता है कि उनको लगता है कि कुछ क्वेश्चन ही नहीं बचा। तो अगर किसी को समझ में आ जाता है, लग रहा है कि सब कुछ परफेक्टली एक्सप्लेन्ड है, तो आप कुछ ऐसा कमेंट कर देना कि परफेक्टली एक्सप्लेन्ड, ताकि हम लोग को पता चले कि ये भी एक रीजन हो सकता है कि इसीलिए लोगों को लगता होगा कि सब कुछ तो परफेक्ट है। Just tell us whatever value you've derived, whatever things you've understood, whatever you're taking back from this episode, please comment and let us know. Yes. We enjoy these conversations. We are not going to stop these conversations. Of course. But this is not a conversation between Pankaj and me. This is not a conversation between two presenters. This is a conversation between us and you. Yes. So the you aspect is only going to come from you. So please work on that and give us your feedback, give us your comments, connect with us, start a conversation, and we'll be more than happy to see this community keep growing and growing and growing. Yes, मुझे तो पर्सनली सबसे अच्छा मेट्रिक कमेंट लगता है अपने लिए। आप लाइक करोगे तो उसमें दिखता नहीं कि क्या लाइक हो रहा है, कितना, बस नंबर्स दिखता है, 1000 लोग लाइक किया ही है। सब्सक्राइब कर रहा है वो भी दिखता है, बस बढ़ रहा है। बट कमेंट्स कभी कभी दिखता है तो मैं मनीष जी के साथ शेयर करता हूँ जाके, अरे देखिए मनीष जी ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, खुश होते हैं, तो और थोड़ा एक्साइटमेंट लगता है। हम लोग करेंगे तो जरूर, ऐसा नहीं कि कमेंट करो चाहे नहीं करेंगे, बट एक थोड़ा मजा आता है। करेक्ट। यस। So yeah, तो मनीष जी अब रिकमेंडेशन का टाइम आ रहा है। Okay, so this is where this is the responsibility that Pankaj has given me. Although Pankaj, Yes. I am also going to start asking you for recommendations. Okay, so you मैं prepare start करूंगा working आपसे। on that. You start working on that. Yes. So this is the point where I recommend something. And today, before logging in for this episode, I was watching another podcast, Raj Shamani's podcast with Scout and 8-Bit. These are two gamers. And Scout ended up saying a very important thing. Now, Scout started
on YouTube gaming streaming in somewhere about 2016, 17, 18. I'm not being able to recollect the dates. He said something very important. He said he has seen the journey of 0 to 100 subscribers. Okay. And he said today's world does not enjoy or does not relish or does not even know the importance of the journey of 0 to 100 subscribers. What I'm trying to say is people today want fast numbers. They want immediate numbers. They want growth. 0 to 100 subscribers तो कोई यूट्यूबर ही नहीं है. जब तक 1000, 10,000, 100,000 सब्सक्राइबर्स नहीं तब तक तो तुम बात अच्छा, भी नहीं जीरो करो. 0 to 100 बोल रहे थे इसमें. मुझे बार बार 0 हाँ. to 100 के अंदर जा रहा था. देखा see this is exactly the point. Scout बोल रहा था he has actually streamed for hours and he has literally seen one subscriber growing. So literally 100 subscribers, not 100K. Okay. Which means we as humans, mindset wise, we have literally changed the way we look at business. And in such a scenario, I was thinking of this one person, this one book, which really inspired me because they started their journey from 0 to 1. They literally built a business. So today we are building digital businesses and we are finding it so difficult to grow a digital business. Imagine building a physical business. Imagine this. Imagine if every webinar was not a webinar but a seminar where you had to take your entire AV setup. You had to do the registration. You had to put the chairs out or at least see that the chairs are in place. You had to welcome every person. Imagine how energy consuming that could be. I'm lucky कि मैं webinar zone में चालू किया है सब कुछ. I didn't have to do seminars. So I have done seminars and that is why I know. But at the same time, now this comment from Scout is going to live with me for a very long time. But I thought of this book which inspired me tremendously, which I'm going to share with you. The book is this, Grinding It Out by Ray Kroc. This is the story of McDonald's, how McDonald's was built. I got to know about this book. This book in itself is a story. I had to wait for 21 days, 30 days for this book to get delivered because when I got to know about this book, I had to order it from Amazon International. Amazon India में ये नहीं था. आज तो मैंने देखा before coming here कि हाँ, this book is easily available on Amazon India. I'll share the link below. So this is the book that I had to get imported and I had read through each and everything. It talks about how Ray Kroc built McDonald's and that is such an inspiring story. Today, McDonald's is the biggest QSR brand in the world and every cafe is built physically. You don't have a digital McDonald's, right? You can't order a digital burger, eat and get done with it. I have my own challenges and reasons about the brand not serving the best food. That's completely different, but there is no way you can disrespect the business or the institution that Ray Kroc has built with McDonald's. So this book talks about the effort that goes in, the kind of challenges that he faced, and you will realize you will face similar challenges, and these books are going to help you get inspired and realize that this is not the end and it's just a thing that you have to overcome, and everybody has overcome these challenges. So this book has really helped me a lot, and I'm sure if when you read it, it's going to help you also. So this is my recommendation for the week. Great. मुझे ही पढ़ना है. Like मैं तो डर गया था जब आप बोले कि रिकमेंडेशन देना चालू करना होगा. बोले अरे क्या रिकमेंड करे, कैसे करे. जब भी रिकमेंडेशन का बात आता है तो मेरे दिमाग में टूल्स घूमने लगता है कि इसका रिकमेंड करेंगे, ये ऑथर को रिकमेंड करेंगे, वो करेंगे. बुक्स से बहुत मेरा अभी दूरी बना हुआ है. मैं ठीक है, कलेक्ट मूवीज, कर रहा कोई हूँ पर्टिकुलर, कोई पॉडकास्ट एपिसोड, कुछ और जो भी चीज से आप सीखते हो. यस. सो मैं भी दे ही देता हूँ रिकमेंडेशन. मैं सोच रहा था तो आप रसल ब्रंसन और क्लिक फनल्स को एक्सप्लोर कर सकते हो लोग जो भी देख रहे हो, क्योंकि आज हम लोग रजिस्ट्रेशन सिस्टम, लैंडिंग पेजेस का बात कर रहे थे. करेक्ट. तो इसके बहुत बड़े वो गुरु है इस फील्ड में. तो क्लिक फनल्स पे आप जाओ, उसको आप एक्सप्लोर करो कि क्लिक फनल्स का क्या है. उनका 300-400 बिल्ट इन टेम्पलेट्स आता है. वो खरीदना नहीं है आपको, वो बस एक्सप्लोर करने के लिए फॉर टाइमिंग कि
कैसा कैसा लैंडिंग पेजेस बन सकता है, क्योंकि फनल्स का कॉन्सेप्ट भी वही पॉपुलराइज किए पूरा का पूरा, कि ये जो लैंडिंग पेज हम लोग बना रहे हैं तो पूरा का पूरा एक तरह से फनल है, जो हम लोग बात कर चुके हैं। अगर आप प्रीवियस एपिसोड Correct. देखे तो आपको पता ही है फनल क्या है। तो ये पूरा क्लिक फनल सबसे मतलब वर्ल्ड का टॉप प्लेयर है। तो वो एकदम बेस्ट फनल्स बनाते हैं, एकदम पूरा ऑप्टिमाइज्ड। जो भी हम लोग आज बात किए वो एक फनल के लिए लेके बात की है। उसमें हजार हजार तरह का फनल होता है। कॉल फनल हो गया, ये फनल हो गया, लीड मैग्नेट फनल हो गया, ई बुक फनल हो गया। तो अलग अलग पेजेस को ओपन करो, एक्सप्लोर करो। फिर सेकंड होता है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। आप गूगल पे जाओ, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी लिखो, और उस पे आप फेसबुक का पेज नेम डाल सकते हो, बिजनेस नेम डाल के बाकी लोगों का एड्स देख सकते हो। तो आपको अभी एड्स देखकर इंस्पायर नहीं होना है, आपको वहां पे क्लिक करके अंदर लैंडिंग पेज पे जाना है। आप किसी भी जो भी एड चला रहा है फेसबुक पे, फेसबुक एड लाइब्रेरी पे जाके उनका एड देख सकते हो। और एड देखकर लैंडिंग पेज पे जाओ, और लैंडिंग पेज पे से इंस्पिरेशन लो कि क्या क्या लैंडिंग पेज का एलिमेंट हो सकता है। तब जब फ्यूचर में हम लोग बताएंगे कि और कैसे कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो आपको एक पता रहे कि आपका स्ट्रक्चर क्या रहे। आप अपने कॉपी पेन पे लेके बना लो कि हमको ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए, ये कंटेंट चाहिए। तो ये दो चीज आप कर सकते हो, क्लिक फनल्स को फॉलो करना है और फेसबुक एड लाइब्रेरी पे एड्स को एक्सप्लोर करिए। Fabulous. I'm so happy for these recommendations. We'll, I should explore this more henceforth. I'll यस, keep reminding you about these recommendations. So यस, yeah, do you have anything else to say, or can we close this episode for ऑफ today? कोर्स वी कैन क्लोज दिस। आई एम जस्ट हैप्पी अबाउट द मैकबुक की बैटरी खत्म ही नहीं हो रहा अभी। ये हाँ, बैटरी चार्ज पे लगा हुआ नहीं है। हाँ, इनफैक्ट अभी अगर ये मेरा विंडोज वाला लैपटॉप रहता है तो वो मेरा 1.5 से 2 घंटा पावर बैकअप देता है, कितना ही ट्विक करने के बाद भी। और मैं इसको अभी देख पा रहा हूँ, अभी अभी 68% बैकअप दिखा रहा है। तो मुझे correct. I पर्पस सॉल्व I हो रहा है मुझे। started I started this episode at what, 80 to 83%, and it's at 65% for me. यस, सो ये पर्पस सॉल्व हो Okay, रहा है आई थिंक। एंड perfect. क्वालिटी भी, लाइक कैमरा का क्वालिटी भी, लाइक इवन दो आई डू फ्रॉम लॉजिटेक 1080p वाला कैमरा, बट ये वाला थोड़ा और रियलिस्टिक फील आ रहा है इससे। सो आप Yes, ऑडियंस अगर आप यहाँ तक भी रुके हो तो आप बता सकते हो, ये भी एक पॉइंट कि पहला वाला कैमरा आपको अच्छा लगता था कि ये वाला कैमरा आपको अच्छा लग रहा है। विच वन कैमरा डू यू perfect. लाइक? फॉर मी, We'll look forward to every comment that we get. Okay. यस, यस, ऑलराइट, So yeah, this has been our episode today for registration systems. If you've liked this episode, please don't forget to support us by liking this video. Subscribe to the channel if you're still not a subscriber. About यस, 80% people who watch our videos are not subscribed to our channel. So you become that one person who takes that number down. I want about 20% people who watch our episodes to not be subscribers. यस, I want 80% people to be our loyal subscribers. So it starts with you and your subscription. So please go ahead and do that for us. I'll be really grateful for you. If you've liked this episode, we are just getting warmed up because we spoke about a landing page. But how do you get traffic to your landing page? How do you get traffic to your website? How do you actually build your community if you don't even get thousands and thousands of people coming to you and getting to know about you? How do you do that? Is by building traffic to your website, to your content. And how do you do that? Is by building ads. Now we are getting into the deeper ends of the ocean of digital businesses. So next week we are going to start an introduction session on what are the traffic sources, how do you run ads, and we are going to give you an overview of the ads world of Meta ads, of Google ads, and retargeting, and the different forms of organic content, and importance of omnipresence, and all other things to get you introduced and warmed up to the world of ads. If that excites you, subscribe to the channel and do not forget to sign up to the next episode of Coach I Need Help, Friday evening, 6 p.m. Indian Standard Time. Thank you for watching this episode till the end. I'll see you in the next episode. बाय। Bye.